प्लीज गो अहेड मैम। यस मैम। एक्चुअली मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ अपने आप से। मैं भावना बात कर रही हूँ यहाँ से। और अपने विचार में आप लोगों के सामने जितना हो सके प्रकट करने की कोशिश करूंगी, और मैं ट्राई करूंगी कि आप लोग मुझसे भी आगे जाओ और मैं आपकी जर्नी में एक शायद थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊँ, ताकि आप मुझसे भी आगे निकल सको। थैंक यू। बढ़िया मैम, बहुत अच्छा, बहुत खूब ने आपने कहा कि मेरे से आगे बढ़िए आप। मैं तो बढ़ चुकी हूँ, आगे चल चुकी हूँ, मेरे से भी नो यू हैव टू गो आगे। तो वो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। डियर फ्रेंड्स, शी हैज अ लवली एटीट्यूड, शी हैज ऑलरेडी कम टू अ सर्टेन लेवल. She wants all of you out there also to cross that level and achieve more in life. And that is the beauty of human life, wanting the best for others. Dear friends, I'd like to introduce our guest in an official way. मैम, आपको ऑफिशियल वे में इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे मैम, आपके परमिशन के साथ? यस मैम, बिल्कुल इजाजत है। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. Dear friends, let's go ahead and get to know our guest in an official way. I'd like to just let you know that ma'am, that is Mrs. Bhavna Chillar Lakra from Delhi. Her designation is she's a clinical psychologist and a professor as well. She's qualified for UGC NET. She's completed her MA in clinical psychology. She's done her master's in commerce as well. Dear friends, she began as a commerce graduate. She's completed her BCom from Hansraj University. And as well, she's completed her MCom. And then she had an inclination or an interest in human behavior. She wanted to know why people behaved in a certain way. And so after having 4 years of experience in the account field, she slowly transformed into becoming a clinical psychologist. How did this interest develop? कैसे शुरू हुआ? 11वीं क्लास में शुरू हुआ था, जब लोगों का बिहेवियर, बर्ताव देखने लगे, तब मैडम को लगा कि भाई हाँ, मुझे कुछ इसमें और जानकारी पानी है. तो इसीलिए उनका जो आकर्षण था टू साइकोलॉजी. कारण क्या है कि एक इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है, तो उसके कारण क्या है? कारण तो बहुत सारे होंगे, तो क्यों ऐसा होता है और कैसे उसको नेगेटिव बिहेवियर को कैसे कम कर सकते हैं, उनका मदद कैसे करना है, समझना कैसा उनको समाज में, और उनको इज्जत कैसे देनी है. तो दैट इज व्हाई शी हैज टेकन अप साइकोलॉजी, एंड दैट्स रियली वेरी नाइस माय फ्रेंड्स. एंड डियर फ्रेंड्स, apart from that, she is also well versed in painting and sketching. She loves to draw and paint. That's also very nice. She's into art therapy. And dear friends, she also has a wonderful YouTube channel also called as Bhavna Psychology Classes, where she gives beautiful tips on psychology. And friends, she belongs to actually Haryana, where she was born. And she is now in Delhi and she's working. And friends, she's like a young mother out there to do her best for the society, not only taking care of her family and friend circle, she also loves to give it to the society, giving back to the society. Samaj ko kuch dena hai. And then she also, the surprise here is she has a 4-year-old son. Dear friends, she's currently counseling students who are in their MA and BA, pursuing their MA and BA in which field? Psychology field. She gives them coaching. She, clarifies their questions. If they have any doubts, she's there guiding them in their career, in their, interest in the psychology field. Apart from that, she's from the commerce field as well. She has lots of knowledge. So let's get ahead and get to know our guest. चलिए हमारे गेस्ट को और डीपली गहराई से जानेंगे हम, उनका काम क्या है और समाज के लिए क्या करना चाहेंगे. मैम, धन्यवाद मैम, एंड वेलकम टू द सेशन. डियर मैम, अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? आप, भावना जी कौन है? बेसिकली मैं एक बहुत ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाएगी वैसे तो, बट मैं बहुत ही हम्बल पर्सन हूँ। मुझे अच्छा कोई भी ऐसा पर्सन नजर आता है कि जिसकी मुझे हेल्प करनी चाहिए, या फिर मेरे पास जनरली यूट्यूब के थ्रू कुछ कॉल्स आते हैं कि मैम मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इग्नू में कैसे आगे बढ़ना है, या फिर डीयू में एडमिशन कैसे लेना है, या फिर इस फील्ड में आगे कैसे जाना है, या मेरे लिए कौन सी फील्ड जरूरी होगी। तो उन सब के क्वेश्चंस में ट्राई करती हूँ कि उनको एक्सप्लेन करने की और कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा बचपन से ही ये नेचर रहा है कि मैं लोगों की हेल्प कर किसी ना किसी वे में, मतलब कि अगर वो मेरे पास आए हैं, मुझे उस चीज की नॉलेज नहीं है, तो मैं सामने वाले से, अपनी सीनियर से उनके उस चीज के बारे में पता करूं, और देन मैं मतलब कि उनकी हेल्प करूं, और वो आगे बढ़े, मतलब कि उनकी जो रास्ते में जो रुकावट आई है वो मेरे पास आके मतलब कि कहीं और उन्हें नहीं जाना पड़े उस चीज में, और किसी ना किसी तरीके से उनकी हेल्प हो सके।
और जनरली मेरा काइंड नेचर है इस चीज में कि मतलब किसी भी तरीके से, जैसे एनजीओ करते कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होती है, मेरा भी वही नेचर है कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, एक काइंडनेस वाला एक हम्बल नेचर आ जाता है। और साथ में एक पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा, मतलब कि स्ट्रेंथ लगा लो या फिर मेरी क्वालिटी लगा लो, पंक्चुअल और डिसिप्लिन, वो बचपन से रही है मेरे के अंदर कि मैंने एक मतलब कि एक पंक्चुअलिटी रहनी है कि हर चीज टाइम पे होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए कि हाँ, हर चीज कंसिस्टेंट होनी चाहिए लाइफ में। पढ़ाई करनी है अपने लिए तो भी मैंने कंसिस्टेंसी रखनी है उसके अंदर, मतलब ये है कि अगर मेरे को नींद भी आ रही है तो मैं उस चीज के लिए स्किप कर दूंगी, उससे लड़ जाऊंगी उस वक्त, कि मुझे ही पता है कि हाँ, ये मेरे लिए जरूरी है तो मुझे करना है। तो उसको मतलब कि मेंटेन करते हुए चाहूंगी कि लोग मुझे उसी तरीके से मतलब कि याद रखें और मैं उसको मतलब कि हेल्प कर पाऊँ और किसी ना किसी वे में हर एक इंसान के काम आ सकूं, जो भी मेरे पास आता है वापस ना आ जाए, मतलब कि खाली हाथ ना जाए वहां से। ओ ग्रेट, दैट्स रियली नाइस। काली हाथ ना जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ ना कुछ मेरी तरफ से मैं दे दूं, या तो यस। नॉलेज हो या मेरे अच्छे बातें हो या काउंसलिंग हो। आप इस फील्ड में रहे हैं, आप देखे हैं कि बिहेवियर चेंजेस होते हैं लोगों में, उन लोगों को स्ट्रेस होती है, तो उन लोगों को क्या सुझाव देते हैं, कैसे समझाते हैं कि भाई स्ट्रेस इस तरह मैनेज किया जाता है। अगर आपकी लाइफ में भी कोई स्ट्रेस आया होगा, प्रोफेशनल स्ट्रेस, तो आप स्ट्रेस मैनेज कैसे करें मैम, कैसे कर रहे हैं, तो हमें भी बता दीजिए। बिल्कुल मैम। बेसिकली है ना, हमारी फील्ड में एक चीज होती है माइंडफुलनेस थेरेपी, हम उसको माइंडफुलनेस थेरेपी बोलते हैं। हम लोग नॉर्मल अपने घर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी एक टाइम आता था कि जैसे कि मैं नहा रही हूँ ना, तो मेरे माइंड में 1000 थॉट्स उस टाइम पे चल रहे होते थे और वो मतलब पॉज ही नहीं होता था उसका। मतलब कि बार बार कभी किसी चीज के बारे में सोच रही हूँ, कभी किसी, अभी बच्चे का लंच पैक करना है, अभी ये करना है, अभी वहां पे जाना है, अभी ये काम है, अभी ये क्लास लेनी है, अभी ये नोट्स बनाने, अभी ये पीपीटी बनानी है, अभी घर का ये काम है। तो मतलब इतने सारे थॉट्स जनरली हर एक हाउस वाइफ के मतलब कि माइंड में, या फिर हर एक स्टूडेंट के माइंड में, उसकी कॉलेज से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड हर एक इंसान के माइंड में कोई ना कोई थॉट चलता रहता है। माइंडफुलनेस थेरेपी आपको बोलती है कि जहां पे आप हो ना, उसी चीज पे आप फोकस करो, कंसंट्रेट करो। और ये मैं बता दूं, एकदम नहीं होगा ऐसे चुटकी बजाते ही मतलब कि कोई चीज नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे उसको आप जैसे कि उसके हैबिचुअल हो जाओगे, यूज टू हो जाओगे, देन वो चीजें मतलब कि आपकी लाइफ में बन जाएंगी। आपका जो फोकस है एक जगह पे फिर ठहरना स्टार्ट हो जाएगा, उस पर आप फोकस कर पाओगे। और मैंने खुद मतलब कि ये चीज ट्राई की है। और मेरी लाइफ में अब ये होता है कि हाँ, जहाँ पे मैं होती हूँ ना, बस उसी चीज को मैं मतलब कि ध्यान रखती हूँ, फिर मैं बाकी चीजें मतलब कि हटा देती हूँ अपने माइंड से कि हाँ, अभी मैं आधे घंटा यहाँ पे हूँ तो आधे घंटा मैं यहीं पे हूँ, मैं और कहीं पे नहीं हूँ। तो वो फोकस रहना आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है, वरना आप लाइफ में ना आगे नहीं बढ़ पाते। आपको 24 घंटे स्ट्रेस रहेगा, फिर वो आपको काउंसलर के पास जाना पड़ता है। तो ये काउंसलिंग आप खुद करके देख लीजिए अपने आप से। फिर अगर नहीं होती है हेल्प, देन आप काउंसलर के पास जा सकते हैं। तो और एक चीज मैं बिलीव करती हूँ इस बात पे, कि मैं आपको बोलूँ कि मतलब गुड़ मत खाओ। एक छोटी सी चीज होती है कि हम लोगों में बोलते हैं मतलब गुड़ नहीं खाना, चीनी नहीं खाना। सबसे पहले मुझे खुद छोड़ना पड़ेगा। तो वही चीजें मैंने माइंडफुलनेस थेरेपी मैंने सबसे पहले अपने पे अप्लाई की, उस चीज को फोकस करके। और तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि हाँ, आप ट्राई कर सकते हो। और वो धीरे धीरे अब 2 या 3 साल के बाद मेरे अंदर वो चेंजेस, वो कामनेस आनी स्टार्ट हुई है। तो एकदम से तो नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा, तो आपको ट्राई करना, वो बहुत हेल्प करती है। ग्रेट। माइंडफुलनेस, राइट। यस मैम। खुद पर भी ट्राई किया और आप उसमें सक्सेस हो गई, तो दूसरे लोगों को भी आप एडवाइस करते हैं कि भाई आप लोग भी माइंडफुलनेस फॉलो कीजिए, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। यस, दैट्स जी मैम। रियली नाइस। जैसे गुड़ के बारे में बोल दिए कि भाई यस, यू गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट, बहुत खूब मैम, वेरी नाइस। देखिए मैम, आप है एक इंस्पिरेशन हमारे लिए सभी, आपके स्टूडेंट्स के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए आप तो इंस्पिरेशन हो। आपके हरियाणा में, आप दिल्ली में, यू आर एन इंस्पिरेशन टू योर ग्रुप, टू ऑल ऑफ अस। आज हमारे मंच पर है तो हमारे लिए आप इंस्पिरेशन बन चुके हैं। आपके बातों से हमको लग रही है कि भाई आप बहुत अच्छे हैं, और आपके जो अंदर है, जो भावना है, जो इंटरेस्ट है, सभी के साथ बांटना चाह रहे हैं आप। दैट्स रियली वेरी नाइस। ये पूछना चाह रहे हैं मैम कि आपका इंस्पिरेशन कौन था, और आप इस फील्ड में कैसे उतरे, ये साइकोलॉजी फील्ड में, थोड़ा गहराई से बताइए। बेसिकली जब मैं 11th 12th में थी, वो टाइम था 2011 एंड 12th का। तो उस वक्त हमें पता नहीं था कि साइकोलॉजी जैसी कोई फील्ड होती है, मुझे नहीं पता था कि साइकोलॉजी जैसा कोई नाम भी होता है उस वक्त। लेकिन हाँ, ये चीजें मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी कि किसी के बारे में जानना। और एक मेरी 11th की एक टीचर रही थी, मीनू मैम करके। तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि अरे कि जैसे किसी स्टूडेंट को खड़ा किया, ये मेरे से ना झूठ मत बोलना, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, मैं सामने वाले को देख के ये पता बता देती हूँ कि उसके माइंड में क्या चल रहा है।
तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये जानना तो बहुत जरूरी है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि हाँ सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है ये पता चल जाए, इससे अच्छा तो कुछ है नहीं। उस वक्त ये नहीं पता था कि हाँ इस चीज को हमने थेरेपी पे लेके जाना है या इस तरीके से लेके जाना है, लेकिन हाँ वो शब्द मतलब कि अभी तक मुझे याद है, बड़े इंटरेस्टिंग लगे थे। बट उसके बाद ये था कि कॉमर्स बैकग्राउंड था, कॉमर्स की क्लासेस वगैरह थी, देन जॉब वगैरह भी की काफी साल। फिर सडनली मेरी एक फ्रेंड है ज्योति यादव करके, उन्होंने मतलब कि मुझे बोला कि नहीं यार तू तेरे को ना हर चीज पहले से पता चल जाती है, जो मैं तेरे को बता रही होती हूँ तू ये बता देती कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, जो भी मैं चीजें तेरे को एक्सप्लेन करती हूँ, मैं 2 या 3 शब्द बोलती हूँ, तू मेरे बारे में बता देती है। या तेरे को ना साइकोलॉजी करनी चाहिए। मैं ऐसा कोई सब्जेक्ट भी होता है, मैंने उससे ये पूछा ऐसा कोई सब्जेक्ट भी होता है, मुझे तो मतलब कि इतनी ज्यादा नॉलेज है नहीं, बट अगर ट्राई करूंगी, अगर कोई डिप्लोमा कोर्स होता है या कुछ भी है, मतलब कि एज ए पैशन उसको लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल फील्ड तो कॉमर्स ही है। कि उस वक्त मैं जॉब कर रही थी, एज एन अकाउंटेंट जॉब कर रही थी, और मेरे को 6 साल हो गए थे उस चीज में काम करते हुए। देन मैंने इग्नू पे सर्च करना स्टार्ट किया, डीयू में सर्च करना स्टार्ट किया, और साथ के साथ फिर मैंने देखा कि हाँ ऐसा तो एक सब्जेक्ट है और मैं डायरेक्ट एमए में एडमिशन ले सकती हूँ। फिर उसमें मैंने एडमिशन लिया 2018 में। 18 में मैंने एडमिशन लिया था, या 17 में एडमिशन लिया था, 18 में करना स्टार्ट हो गया था। तो वहां से हमारी जर्नी आगे बढ़ी, और उसमें भी फिर टीचिंग किस तरीके से आई, क्योंकि मैं कॉमर्स में ही जॉब कर रही थी, उस वक्त भी कॉमर्स की ही जॉब कर रही थी, अकाउंटिंग की जॉब कर रही थी। सडनली एक टाइम ऐसा है कि जब हम लोगों की शादी होगी, 2018 में मेरी शादी हो गई थी करते करते, और फिर जैसे मैं प्रेग्नेंट हुई, बच्चा हुआ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे उसको टाइम देना है, तो घर से मुझे कुछ करना है। तो मैंने अपनी क्लासेस पूरी करी, एमए पूरा किया उसमें, और देन यूजीसी का नेट क्लियर किया, और धीरे धीरे फिर मुझे घर पे बैठना, खाली बैठना नहीं पसंद एक्चुअली, घर पे भी नहीं, खाली बैठना नहीं पसंद, मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है। और वो चीजें मुझे लगता है कि लाइफ में ना हर किसी को होती है, जब गोल नहीं होता ना कोई भी करने के लिए, तब हर किसी इंसान को फ्रस्ट्रेशन होती है। तो मैं हमेशा दूसरों को भी ये सजेस्ट करती हूँ, आप अपने खुद को बिजी रखो, कि जितना आप बिजी रखोगे खुद को, आप मतलब कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो वहां से, और अपनी गोल पे अपनी एनर्जी लगा सकते हो, बजाय कि आप फालतू की चीजों को, फालतू के स्ट्रेस को अपने घर में जगह दो, अपने मतलब कि अंदर जगह दो। तो उस चीज को मैंने अपनी गोल की तरह लेना स्टार्ट किया कि नहीं अब मुझे बच्चे का भी ध्यान रखना है, और उस चीज को भी मेरे को आगे लेके जाना है। तो मैंने ऑनलाइन एक जरिया निकाला, और उसके बाद कोविड भी आ गया था, तो ऑनलाइन क्लासेस जूम पे लेनी स्टार्ट की, काउंसलिंग करनी स्टार्ट की, और वहीं से मतलब कि जर्नी कब यहाँ पे बढ़ गई है, अब मतलब कि अब पूरे इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया भी स्टूडेंट्स आते हैं। तो उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा उसके बाद। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी जर्नी रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एंटायर जर्नी। बहुत खूब आपने शेयर किया, हमको समझाया कि भाई आप कैसे इस फील्ड में आए हैं, और माँ बनने के बाद में आपको बिजी रखना था, अपने बच्चे को केयर करना भी है और खुद को बिजी भी रखना है। और ये बिल्कुल। सजेशन भी करे सभी लोगों को बाहर कि भाई आप लोग भी अपने को बिजी रखिए, खाली मत रखिए। तो हाँ जी। खाली रखे तो क्या, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कुछ ना कुछ तो आ जाएगी। जी। सोचने लगते हैं कि भाई क्या है इस जिंदगी में, कुछ भी नहीं। अगर अपने आप को बिजी रखेंगे तब जिंदगी का मतलब समझ में आएगी। एम आई राइट? दैट्स रियली बिल्कुल वेरी मैम। नाइस, ग्रेट मैम। डियर मैम, आपको खुद में क्या अच्छा लगता कि भाई देखो, देखिए मैं भावना हूं और मुझ में ये गुण है, और मुझे ये गुण मुझ में बहुत पसंद है, तो अ, इसीलिए मैं बहुत स्ट्रांग हूं। मैं वो कौन सी गुण है मैम आप में जो आप आइडेंटिफाई करें? मुझे लगता है कि मेरा नेचर बहुत हम्बल है, और मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटती, क्योंकि मैं मेरा भी मानना है कि अगर कोई मेरे पास मतलब बड़ी उम्मीद से आया है, कोई भी इंसान मेरे पास आता है हेल्प के लिए, तो वो इस उम्मीद से आता है कि हाँ यहाँ पे मेरी हेल्प हो सकती है, और उसको फिर मैंने ये बोला कि नहीं मैं नहीं कर सकती, या मैं उसको मना कर दूं, हो सकता है मैं बिजी हो सकती हूँ, उस वक्त क्लास ले रही हूँ या कुछ और कर रही हूँ, काउंसलिंग सेशन ले रही हूँ, तो मैं उसको बोल सकती हूँ कि नहीं आप मेरे को है ना 5 बजे के बाद कॉल करना, देन मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। लेकिन मैं ये ट्राई करती हूँ, कोई मेरे पास इतनी उम्मीद से आए तो उसको मैं खाली हाथ ना लौटाऊं कभी भी, क्योंकि अगर मैं किसी की हेल्प नहीं करती, अगर उसके बाद मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, मैं अपने सीनियर्स के पास जाती हूँ, अगर वो मुझे सेम रिएक्शन देंगे किसी पॉइंट पे, तो मुझे भी शायद वो मतलब कि दुख होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो चीजें मतलब कि मेरे अंदर उस वक्त चलती है, मेरे माइंड में चलती है कि नहीं अगर मैं इनकी जगह पे होती, जिसको हम एम्पैथी बोलते हैं, कि अगर मैं इनकी जगह पे होती तो मुझे कैसा लगता। तो वो मैं हमेशा सोचती हूँ, और मैं इसी मतलब रीजन से दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेंथ भी है कि दूसरों की हेल्प करना, और ये हेल्पिंग नेचर होना,
या फिर आपकी एक मेरी पंक्चुअलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज की ली है तो मैं वहां पे उसको बीच में नहीं छोड़ सकती कभी भी, कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामने वाला मेरा वेट कर रहा है, सामने वाले ने काम करने के लिए मुझे बोला है और ये डेडलाइन है, तो उससे पहले मैं उसको करके, ये हमेशा मेरे माइंड में रहता है। मैम ऐसा है कि अगर हमारे जैसे औरतें बाहर है जो आपसे मिलना चाहेंगे, उनका स्ट्रेस बताना चाहेंगे, तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको कैसे रीच कर सकते हैं? कुड यू शेयर दैट? बेसिकली मेरा एक यूट्यूब चैनल है भावना साइकोलॉजी क्लासेस के नाम पे, उस पे भी मैंने अपना नंबर डाला हुआ है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। जब मैं फ्री हो जाती हूँ मैं आपको मतलब कि कॉल बैक कर लूंगी उस वक्त, और मैं आपसे पूछ भी लेती हूँ कि कब आप फ्री हो, कब मेरा टाइम भी मैच करे, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कांटेक्ट करूँ। और अदरवाइज आप, मैं एक नंबर यहाँ पे बता देती हूँ, आप वहाँ पे वो नंबर नोट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 9625782795, ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि कई बार मैं बिजी होती हूँ तो मैं कॉल नहीं आंसर कर पाती, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे आप अगर मुझे कांटेक्ट करोगी, या फिर कमेंट सेक्शन पे, किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन पे भी जाते हो, अगर वहां पे आप कमेंट करते हो, मैं हर एक सिंगल कमेंट देखती हूँ, हर एक सिंगल कमेंट देखती हूँ, और वहां पे मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ। वहां पे भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, किसी भी वीडियो के नीचे भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं ट्राई करूंगी, अपना बेस्ट ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। ओके, दैट्स रियली नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया मैम फॉर दैट, थैंक यू सो मच। डियर मैम, जब आप स्कूल और कॉलेज में थे तो क्या आप स्पोर्ट्स और गेम्स में इंटरेस्ट दिखाए? आप कुछ था ऐसा, आसक्ति था? मैम एक्चुअली मैं जब स्कूल टाइम में थी तो मुझे रेसिंग में बड़ा इंटरेस्ट था, और उसके पीछे भी एक रीजन है कि स्टार्टिंग से जैसे कि रेस करना, रनिंग करना, मतलब कि ये बचपन से मेरी हैबिट में रहा है। तो उसके बाद उस वक्त मेरे ग्रैंडफादर ने भी मुझे बोला था कि नहीं यार, आपकी रनिंग बहुत अच्छी है और आपको है ना एक दिन मैं रेसिंग में लेके जाऊंगा। बट धीरे धीरे मतलब कि जैसे कि मैं 10th 11th में आई तो उसके बाद मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया, और वो इंटरेस्ट खत्म होने की एक वजह थी कि मैंने जब रेसिंग में पार्टिसिपेट किया तो एक लड़की थी हम लोगों की क्लास में जो मुझसे इतनी ज्यादा तेज मतलब कि रन कर रही थी, तो उस वक्त मुझे लगा कि नहीं यार, ये वो लड़की है जिसको जाना चाहिए आगे, मैं इस फील्ड के लिए तो नहीं बनी हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर, क्योंकि जो चीजें आपके अंदर फ्लॉज होते हैं, मिस्टेक होती है, या जो आपके अंदर कमियां होती है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो वो चीजें मैंने एक्सेप्ट की कि हाँ, कि ठीक है लोगों को लग रहा है लेकिन ये मुझसे बहुत ज्यादा बेस्ट है, वहां तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगी अगर अपना मैंने 200% भी दिया। तो उस चीज को मैंने एक्सेप्ट किया, और वहां पे मैंने उस चीज को मतलब कि एंड लगा लो, या फिर मतलब कि मैंने वहां का जो लक्ष्य था ना वो मेरा चेंज हो गया उस वक्त। ग्रेट, दैट्स रियली वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी मैम, आप बुक्स पढ़ते होंगे, है ना? तो यस। उनमें से एक अच्छी बुक का नाम बता दीजिए हमारे लिए, हम सब के लिए, कि भाई हमारे फ्री टाइम में भी हम भी पढ़ सके और नॉलेज गेन सकें। बेसिकली मुझे ना बहुत ज्यादा राइटर्स याद नहीं रहते हैं, या बहुत ज्यादा ऑथर्स वगैरह के नाम याद नहीं रहते, लेकिन हाँ जो मैंने स्टार्टिंग जहां से हुई थी वो मैं आपको बता देती हूँ। एनी फ्रैंक की जो डायरी है, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, उन्होंने ऑटोबायोग्राफी जो है उनकी आई थिंक 166 पेजेस की या 196 पेजेस की कुछ है, तो वहां से आप मतलब कि उस चीज को कर सकते हो। तो वो चीजें बहुत अच्छी हैं, अगर आप उस जर्नी को पढ़ते हो तो वहां से आपको ये चीजें सीखने को मिलती है कि जो नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं या फिर आपके ऐसे हालात होते हैं, वहां पे आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हो उन सिचुएशंस में जहाँ पे मतलब कि सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, वहां पे एक होप अपनी जिंदगी में मतलब कि रखना, एक होप आपको नजर आना, या फिर पॉजिटिव कैसे रहा जाए, या उस चीज में भी इंजॉय कैसे किया जाए, वो आपको डायरी ऑफ एनी फ्रैंक सिखाती है। तो एनी फ्रैंक की डायरी है। सेकंड मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले अपना मतलब कि जो ग्रंथ होते हैं, बाइबल है जैसे किसी की, पुराण है, या फिर अपने जैसे कि मैं हिंदू हूँ तो मैंने रामायण बहुत अच्छे से पढ़ी है। रामायण हुई, महाभारत हुई, भगवत गीता आप लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि रामायण आपको सिखाती है आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, महाभारत सिखाती है आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो दोनों ही चीजें अगर आपने वो चीजें कर ली है तो आई थिंक कोई तीसरी या चौथी बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, लेकिन वहां से इतनी नॉलेज आपको मिल जाती है कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, सारी चीजों का आंसर आपको वहां पे मिल जाएगा। तो पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ो लाइफ में, और दूसरों को हेल्प करो आगे बढ़ने के लिए। वंडरफुल, ब्रिलियंट, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस। थैंक यू। जी मैम, ऐसे कोई मूवी बता सकते हैं कि भाई फिल्म स्टार्स जो है वो मूवीज में एक्ट करते हैं, क्या वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का कोई ऐसा मूवी आपके मन में आए है? Producers, directors, they have to give importance to mental health awareness, not only the romance that they are showing or fighting politics, ये ज्यादा है बहुत।
तो जी आजकल के जो नए डायरेक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, मानसिक बीमारियों को नो शेयर करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो ऐसी कोई मूवी है आपके मन में जो शेयर कर सकते हैं यहाँ पर मैम? बिल्कुल मैम। सबसे पहले जो मैंने मूवी देखी थी, बेसिकली मैंने बॉर्डर मूवी देखी थी। वहां पे आपको देखने को मिलता है टीम वर्क, कि टीम वर्क करना कैसे जरूरी होता है, और जो नेगेटिव सिचुएशन होती है वहां पे आपने पीछे नहीं हटना है। जनरली क्या होता है, हम लोग है ना फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। एक होता है फाइट मोड, एक होता है फ्लाइट मोड। जब आपको मुसीबत नजर आती है सामने, आपको लगता है नहीं आप टैकल नहीं कर सकते, इसको हैंडल नहीं कर पाओगे, आप है ना फ्लाइट मोड में चले जाते हो, आप उससे भागने की कोशिश करते हो। और बॉर्डर मूवी हमें सिखाती है कैसे हमें फाइट मोड में आना है, उससे फाइट बैक करनी है उस चीज से, और उस चीज से मतलब फतेह करके दिखानी है, उस चीज से आगे बढ़ना है हमें। तो एक वो मूवी, हालांकि लोगों को लगेगा कि साइकोलॉजी से उसका कोई मतलब कि नाता नहीं है, लेकिन वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है, कैसे टीम वर्क करना है, कैसे कॉपरेटिव नेचर आपका होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प आपको कैसे करनी है, क्योंकि टीम वर्क के साथ ही आप कोई जंग जीत सकते हो। तो वो चीजें आपको सिखाई जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी मूवी है। एक अभी रिसेंट एक वेब सीरीज आई थी, अलोन, आई थिंक थोड़ी हॉरर टाइप की वो मतलब वेब सीरीज थी। वहां पे आपको पता चलता है डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, जो चीजें हमें सुनाई जाती हैं, दिखाई देती हैं, या सुपर नेचुरल पावर्स जो होती है, एक तरीके का है ना आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है जिसमें ये चीजें होती हैं। उसमें एक्चुअल में थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है जहाँ पे आपको डेल्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, आपको फॉल्स बिलीफ होने स्टार्ट हो जाते हैं। जो चीजें नहीं होती हैं, आपकी इमेजिनेशन में होती है, आप उसको रियलिटी मान लो। कई बार वो चीजें होती है आपके साथ, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आता है, डेल्यूजन बोलते हैं उसे। और एक आपका होता है हेलुसिनेशन, कि चीजें नहीं है फिर भी आपको दिखाई दे रही है, कोई पर्सन नहीं है आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। आई थिंक सब लोगों ने डोरेमोन जो कार्टून है सबको पता है ना? वो बेसिकली जो नोबिता बच्चा था उसको स्किज़ोफ्रेनिया था, वो रियल स्टोरी है बेसिकली, जिसमें डोरेमोन जो उसका इमेजिनेशन मतलब पार्टनर लगा लो, इमेजिनरी फ्रेंड लगा लो, वो इमेजिनरी फ्रेंड था उसका। और उसको लगता है नहीं यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो उसी पे डिपेंड हो जाता है पूरे तरीके से। और जब उसके पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि वो किसी से बात कर रहा है, लेकिन वहां पे कोई नहीं है, वो उसको किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। और जब साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं तो वहां पे उसको, उस बच्चे को धक्का लगता है जब उसको बताया जाता है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, और वो उस शॉक में मर जाता है। तो ये बहुत सैड स्टोरी है जिसपे ये कार्टून बनाया गया है बेसिकली। और ये स्किज़ोफ्रेनिया था उस बच्चे को, जिसको ये डेल्यूजन और हेलुसिनेशन होता था, वो इमेजिनेशन को रियलिटी मान रहा था, और जो उसकी हेलुसिनेशन थी उसको भी वो रियलिटी मान के उसको अपना इमेजिनरी फ्रेंड मान रहा था। तो ऐसा रियलिटी में होता है, ये रियल लाइफ में भी होता है लोगों के साथ, कि उनको अपने दोस्त नजर आते हैं, या इमेजिनेशन में वो किसी को फ्रेंड बना लेते हैं और इस पर डिपेंड हो जाते हैं। तो इस चीज से अवेयर होना हमें बहुत जरूरी है, कि जितनी ज्यादा अवेयरनेस हो सके, कि अगर ऐसा कुछ आपके घर में भी हो रहा है तो आप जाके किसी काउंसलर को, किसी साइकेट्रिस्ट को आप दिखा सकते हो, और धीरे धीरे उस चीज का इलाज किया जाए। ऐसा नहीं कि उस पर्सन को डायरेक्ट आप बता दो कि ये चीजें है ही नहीं, तो वहां पे हार्ट अटैक का मतलब सिचुएशन मतलब कि आ सकता है, या एंजाइटी इतनी बढ़ जाए कि आप कंट्रोल ना कर पाओ। तो वो चीजें हो सकती हैं, तो उससे अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। इतना मैं तो सुन रही थी, एज ए छोटे बच्चे की तरह मैं सुन रही थी कि भाई आप ये सब एक्सप्लेन कर रहे थे बॉर्डर के बारे में, बोले द मूवी बॉर्डर, टीम है। यस। वर्क, कि भाई ये समझ में आना है सभी इंसानों को बाहर, मुझको भी और हम सबको भी, कि भाई टीम वर्क बहुत अच्छा है। अकेले में रहना, अकेले करना वो थोड़े काम सही है, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे काम मिलजुल कर करना है। ये यू शुड चेंज योर माइंड सेट। जी। तो दूसरों का मदद कैसे, उन लोग भी जीतना और हम भी जीतना, तो पूरा टीम, दैट्स अ माइंडसेट वो जो है ना, दैट्स वेरी नाइस। सो बॉर्डर मूवी वन यू सेड, डोरेमोन यू सेड, एंड दैट नोबिता वन, राइट? दैट्स रियली वेरी यस मैम। नाइस। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। डियर मैम, वी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको छुट्टियां मिलती है या नहीं? आप बिजी हो प्रोफेसर की तरह, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, एंड यू आर बिजी विद ऑल ऑफ दिस वर्क्स, कभी कभी छुट्टियां भी मिल जाती है, हाँ या ना? मैम मिल जाती है, या फिर कहूँ कि जब आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, कि आपको टाइम निकालना पड़ता है हर चीज से, कि जब तक आप खुद हेल्दी नहीं हो ना, आप दूसरों को खुश नहीं रख पाओगे। तो खुद खुश रहना, खुद हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। कि और स्पेशली एक मदर के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है ये चीजें, कि जब आप खुद खुश हो ना तो आप दूसरों को खुश रखोगे। जनरली हम लोगों ने अपने मदर को देखा है, वो क्या होता है कि वो हर चीज, उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती, घर के काम से कभी छुट्टी नहीं मिलती। तो वो चीज में क्या होता है कि वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है एक टाइम के बाद, कि वो उनकी इरिटेशन है ना बाहर आना स्टार्ट हो जाती है, या फिर चिल्लाना कि नहीं ये नहीं बन सकता, आज मैं नहीं बना सकती, मेरे पास नहीं है टाइम, तुम्हें तो सिर्फ ऑर्डर देना आता है, तुम्हारी जुबानें हिल जाती है, और मतलब कि मुझे तो वहां पे बनाना पड़ता है। वो चीजें हमें सुनने को मिलती है।
तो मैं चाहती हूँ कि हाँ मेरा वो नेचर ना रहे, क्योंकि वो इरिटेशन, वो फ्रस्ट्रेशन जब हम दूसरों पे मतलब कि ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी किसी पे ट्रांसफर करें, वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो उस चीज को रोकने के लिए ये होता है कि पहले आप खुद खुश रहो। जब आप मतलब खुद खुश रहोगे, खुद हेल्दी रहोगे, देन आप दूसरों को खुश रख पाओगे। तो मैं छुट्टियाँ निकाल लेती हूँ जब मुझे लगता है कि नहीं यार अभी मुझे टाइम की ज़रूरत है या फिर खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उस मतलब 6 महीने में, 3 महीने में, जब भी मेरा मन करता है, मैं 2 या 3 छुट्टियाँ ले लेती हूँ। उससे ज़्यादा अगर मैं लेती हूँ तो मैं फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाती हूँ। मुझे लगता है नहीं यार मैं बहुत ज़्यादा खाली बैठ रही हूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो वो भी मेरे साथ इश्यू है कि मैं खाली नहीं बैठना चाहती। तो 2 या 3 छुट्टियाँ मैं निकाल लेती हूँ, मेरी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि हाँ, सबसे ऊपर मैं खुद को रखती हूँ कि हाँ, मेरी मेंटल हेल्थ सबसे अच्छी है, तो मैं दूसरों को अच्छी मतलब कि उनकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान रख पाऊँगी। तो Excellent. वो बहुत ज़रूरी होता है। Wonderful, wonderful, very excellent. You see, you have been saying like anger displacement कि भाई इतना बिल्कुल। सब फ्रस्ट्रेशन है तो मेरा फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकालूं और वो किसी और के ऊपर निकालती हैं। तो वो नहीं होना है हमारे साथ, ऐसा ना होना है। तो हम लोग थोड़ा सा टाइम अपने लिए देना है, एक बिल्कुल। छुट्टियों में जाना है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट करना है, अपना मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देनी है, रिक्रिएशन एंजॉयमेंट भी रहना है अपार्ट फ्रॉम वर्क। नो, दैट्स वेरी बिल्कुल। नाइस कि ये मेरे साथ भी ना हो। हाँ। Yeah, that's really nice. I love that. That's really nice. जी मैम, अगर ऐसा छुट्टियां मिल भी गए, अब छुट्टियां ले लिए, कहाँ पर जाना चाहेंगे आप? कौन सी जगह आपको अच्छी लगी? बेसिकली कोई फेवरेट प्लेस नहीं है, बट कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे मैं मतलब कि शांति से बैठ सकती हूँ, या फिर इवन कई बार होता है कि आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ हो तो मुझे बड़ी शांति मिलती है पानी के किनारे या बेस्ट फ्रेंड के साथ। अगर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी बैठी हूँ, उसके रूम में बैठी हूँ, कोई बात भी नहीं हो रही है, फिर भी मुझे कंफर्ट लेवल होता है कि नहीं यार ये मेरे साथ है, मेरे को सुकून मिल रहा है वहीं से। तो ये पॉजिटिव वाइब मुझे वहां से मिलती है, मेरी फ्रेंड से मुझे मिलती है। और कहीं भी पानी के किनारे अगर मैं कोई ऐसी डेस्टिनेशन पे जाती हूँ, या फिर इवन आप जैसे गुरुद्वारे होते हैं, गुरुद्वारे भी आप जा सकते हो कि वहां पे भी बहुत सारा मुझे पानी को देख के रिलैक्सेशन मिलती है, उनको देख के मुझे मतलब पीस मिलता है। तो मैं ऐसी किसी भी जगह को मतलब कि चली जाती हूँ जहाँ पे मेरे को मतलब कि बहुत ज्यादा पीस मिले। जैसे कि कई बार अमृतसर भी चले जाते हैं हम लोग। हालाँकि मैं जाट फैमिली से हूँ, लेकिन हाँ, ये होता है मुझे पानी देख के पीस मिलता है, तो मैं अमृतसर भी चली जाती हूँ, या फिर नॉर्मल आप दिल्ली में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं या बाकी जगह पे भी है, तो आप गुरुद्वारे में भी जा सकते हो। या कोई भी ऐसा तालाब है, अगर आप गाँव में भी हो, तालाब के तालाब किनारे बैठो, मंदिर में बैठ सकते हो, कोई भी ऐसी जगह है जो आपको पसंद है, जो आपको पीस देती है, क्योंकि सबका अलग-अलग होता है, क्योंकि आपको ढूँढना पड़ता है कि आपको पीस कहाँ पे मिलता है एक्चुअली। दोस्तों से बात करके मिल रहा है, मूवी देख के मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कि मूवी का जो होता है ना वो शॉर्ट पीरियड वाला होता है पीस। लेकिन आप किसी ऐसी डेस्टिनेशन पे गए हो जहाँ से आपको बाकी सारी प्रॉब्लम्स दुनिया की छोटी लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। वहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स इस चीज़ के आगे, इस पूरे ब्रह्मांड के आगे बहुत छोटी है, तो आपकी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। तो उस चीज़ को आप मैनेज करना सीख जाओगे। तो कभी किसी हिल पे जाके देखना, कभी किसी ऐसी एरिया पे, इवन अपने टेरेस पे जाके देखना, नीचे झाँक के देखना कि इतनी बड़ी दुनिया है, आप इतने छोटे से प्राणी हो उसमें, मतलब कि इतनी करोड़, 140 करोड़ जनसंख्या है हमारी इंडिया की। तो उसमें अगर आप एक सिंगल पर्सन भी, किसको पड़ी है आपकी? किसी को नहीं पड़ी है। तो अपने उस पीस का आपने ही ध्यान रखना है। आप उसका ध्यान रखो, लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी हैं। हम उसको सोच-सोच के इतना बड़ा बना लेते हैं अपने माइंड में कि उससे मतलब कि निकल नहीं पाते, उसमें फँस के रह जाते हैं। तो उस चीज़ पे अपने टेरेस पे जाओ, और कुछ नहीं मिलेगा, पानी के टब लेके बैठो, उसमें पैर दे के बैठो, थोड़ी देर शांति मिलेगी। वहाँ से ले लो शांति। कहीं से भी मिल सकती है, ढूँढने की ज़रूरत है। वंडरफुल, इसको वंडरफुल, बहुत ज़रूरी वेरी नाइस। तो आप पानी के पास रहे, थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको। बिल्कुल, या दैट्स वेरी नाइस। यस। डियर मैम, अगर आप कोई बदलाव लाना चाहेंगे इस प्रपंच में, वो कौन सी बदलाव होगी और अ, क्यों? बेसिकली मैं चाहती हूँ कि सबकी लाइफ में मतलब कि थोड़ा-सा शांति रहे, पीस बहुत मैटर करता है, क्योंकि जितना मेंटल हेल्थ को लेके अभी मतलब थोड़ा-सा अवेयरनेस आनी स्टार्ट हुई है, पहले इतनी नहीं थी। अभी स्ट्रेस हर फील्ड में, हर जगह पे, कोई एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं होगा, आपको भी है स्ट्रेस, मुझे भी है, लेकिन चॉइसेस करनी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में कि हाँ, आपको चॉइस जो होती है ना, वो आपके फेस पे स्माइल लेके आती है, वो आपको दिखाती है कि हाँ, आपको हैंडल कैसे करना है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक पर्सन फ्लाइट मोड में ना जाए, फाइट मोड में आए। और उससे फाइट करना सीखे। तो हर एक इंसान के अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो अपनी स्ट्रेंथ को इतना डेवलप करे, और ये सुपर पावर लगा लो या कुछ भी लगा लो, कि हर एक इंसान के अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाए कि वो अपने स्ट्रेस से डील कर सके, हैंडल कर सके। कि स्ट्रेस एक लिमिट तक होता है तो अच्छा, मतलब कि बुरा नहीं होता, एक लिमिट के बाद वो बुरा होता है। जब तक वो आपको ये टेंशन दे रहा है ना कि हाँ ठीक है, आपको ये काम करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा रहा है, तब तक वो अच्छा है। उसको हम बोलते हैं यूज स्ट्रेस। और जब वो चला जाता है नेगेटिव की तरफ, वो होता है डिस्ट्रेस, कि उससे हमें दूर रहना है। वो इतना जो हम सोच-सोच के अपने माइंड पे उसको हैवी कर लेते हैं।
तो उससे दूर रहना है। तो मैं चाहती हूँ कि सबके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाए कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को मतलब अपनी मेंटली अपने आप को हेल्दी रख सके, वो स्ट्रेस ना ले अपने ऊपर बहुत ज्यादा। तो वो एक पावर लगा लो, या वो चीज, एक बदलाव जो मुझे चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। परफेक्ट परफेक्ट मैम, दैट्स रियली वेरी नाइस। यू नो द वे आपने जैसा उसको अच्छा समझाया हमको, इट्स वेरी नाइस। थैंक To, you know, flight and fight mode. You said I want them to be in the fighting mode, not to flight. यू। यस। चैलेंजेस से भागना नहीं, लड़ना चाहिए, फेस करनी चाहिए चैलेंजेस को, अपने मन को स्ट्रांग रखना है, वो बदलाव चाहिए हर एक इंसान के लिए। पूरे दुनिया में सभी लोग अपने मन पर काबू रखना है। या दैट्स नाइस, वंडरफुल। बहुत, वो भी मैं सोच रही हूँ, बहुत गहराई में आपने, यू वेंट डाउन डीप टू गिव दिस आंसर, तो इट्स वेरी नाइस। तो ऐसी बदलाव हम सब में आए तो इतना अच्छा होगा मैम, ये दुनिया एक दूसरी लेवल पे चली जाएगी, है ना? हम सब दूसरों की, एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे, और मतलब कि एक दूसरे को लेके आगे बढ़ो। एक दूसरे को मतलब कि नीचे डाउन करके नहीं बढ़ना हमें, कि हाँ मेरे से आगे ना निकल जाए, इसको मैं नीचे दबा लेता हूँ, देन मैं ऊपर चढ़ता हूँ। या किसी को कई बार पता है, मैंने ये जेलस फैक्टर देखा है, इंडस्ट्रीज के अंदर भी देखा है, या फिर लोगों के अंदर देखा है कि मुझे बहुत सारा आता है, मुझे 100 आता है, मैं उसको 80 ही सिखाऊंगी, मेरे से आगे ना निकल जाए। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मेरे से मतलब कि ज्यादा किसी को ना आए। वो चीजें मुझे चेंज करनी है कि मुझे 100 आता है, मैं अपना वहां पे 100 दूं, और वो जिस पर्सन को आता है वो 200 पे जाए। मुझे वो करना है। मुझे नाइस। वो चीजें में अपनी गिनती नहीं करवानी कि नहीं यार मुझे 100 आता है, मैं 80 दूं दूसरे को। वो चीजें नहीं करनी है, मुझसे ज्यादा कोई आगे बढ़ रहा है, क्योंकि असली गुरु कौन होता है, जो आपको वो मार्गदर्शन करे आपका, और आपको बोले बेटा मेरे यहाँ पे चेला बन के नहीं बैठना, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, जैसे पहले करते थे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि मैं अपने यहाँ पे लोगों को बैठा लूं कि आप यहीं पे रहो, इससे आगे मत बढ़ो, मेरे आगे यहाँ पे बैठे रहो। वो मुझे नहीं करना है। तो मुझे चाहिए कि मेरे से आगे बढ़ जाओ। वेरी नाइस मैम, आपने एक दुनिया के कड़वा सच आपने बोला आज, है ना? ये समाज में हो रही है और नहीं होना, कि भाई आप बिल्कुल। बढ़ो आगे, दूसरों को भी बढ़ने का मौका दो। अगर आपके आगे बढ़ गए तो उनका, यू नो, बेस्ट विशेस देना है, इनको जेलसी फैक्टर नहीं रहना है। दैट्स रियली नाइस। बहुत खूब। यू हैव अ ब्यूटीफुल माइंड मैम, दैट्स रियली थैंक नाइस। यू। यस डियर। डियर मैम, ऐसे कोई प्लान्स है कि भाई हाँ, ये इस उम्र में मैं रिटायर हो जाऊंगी और बस मुझे और कुछ काम नहीं करना है, बस आराम ही करना है, मुझे जिंदगी का आनंद उठाना है, ऐसा कुछ आपने सोचा? मैम ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि मेरा अभी रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है। कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जब मैं थोड़े दिन भी खाली बैठती हूँ, मुझे फ्रस्ट्रेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लास्ट ब्रेथ तक काम करती रहूँ और लोगों की हेल्प करती रहूँ, चाहे किसी ना वे में। हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद मतलब आफ्टर 60 या आफ्टर 70 शायद मैं लैपटॉप पे ना बैठ पाऊँ, या फिर मेरी आंखें इतनी वीक हो जाए कि मैं नहीं कर पाऊँ। लेकिन फिर भी हो सकता है कि मैं कॉल आंसर कर सकती हूँ, उस वक्त भी लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। या मेरे पास कोई आता है, मैं 4 चीजें उसको सिखा सकती हूँ, या और कुछ नहीं, शायद एक्सपीरियंस सिखा पाऊँ, या कुछ ऐसी बातें सिखा पाऊँ कि हाँ ठीक है, आपको ठोकर खाने की जरूरत नहीं है, आप दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीख लो। कि मतलब कि असली इंसान है ना, जो आगे तक जाता है वो ये होता है, वो दूसरे के एक्सपीरियंस से मतलब कि सीख लेता है, वो स्मार्ट इंसान होता है। खुद मतलब ठोकर खा के आप सीख रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वहां पे उस चीज में। तो ठीक। वो चीजें मैं चाहती हूँ कि हाँ किसी ना किसी तरीके से मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, काम आ सकूँ उनकी, और वो आगे जाए मुझसे। सुपर सुपर, दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक्सपीरियंट लर्निंग के बारे में आप बात करें अभी, कि भाई दूसरों का एक्सपीरियंसेस देख के सीख लो, न खुद करके आप बेवकूफ मत बनिए, दूसरों का जो मिस्टेक्स है उन लोग कर दिए तो वहीं से आप अलर्ट हो जाओ और अपने रास्ता सही तरीके से, यू नो, वॉक ऑन द राइट ट्रैक। वंडरफुल, ब्रिलियंट मैम, दैट्स रियली वेरी नाइस, सुपर। डियर मैम, ये बता सकते हैं हमको कि भाई स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का अंतर आपके नजरिए से क्या है? बिल्कुल। अगर मैं ये बोलूं कि ये काम मैं कर दूंगी, किसी ने मुझे बोला कि नहीं यार ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, कोई नहीं कर सकता इसको, मैं कर दूंगी, दैट इज हार्ड वर्क। मैं करवा दूंगी, मैं करा सकती हूँ, दैट इज स्मार्ट वर्क। वो स्मार्ट वर्क है। मुझे कराना आता है। एक मैनेजर होता है, एक अच्छा मैनेजर क्या होता है, वो लोगों से करा लेता है काम। जो बड़ी पोस्ट पे मिलेंगे ना, आपको किसी भी फील्ड में मिलेंगे, बड़ी पोस्ट पे होता है। अब मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारा प्रेसिडेंट मतलब कि खुद कोई काम कर रहा है, हर छोटे छोटे काम अगर वो खुद करेगा, तो वो बाकी चीजों पे ध्यान कब देगा? बड़ी बड़ी पॉलिसीज पे साइन कौन करेगा? और बड़े बड़े मुद्दे कौन देखेगा, अगर वो हर छोटे छोटे मुद्दे को खुद देखेगा? उनको कराना आता है, उनको स्मार्ट वर्क करना आता है। हार्ड वर्क वो लोग करते हैं जो स्मार्ट वर्क तक नहीं पहुंच पाते, या फिर जहाँ पे ये होता है कि हाँ आप अपना माइंड चलाना नहीं चाहते, वहां पे आप हाथ और पैर आपको चलाने पड़ेंगे।
एक चीज तो चलानी पड़ेगी, आप अपने माइंड को बहुत ज्यादा मतलब कि इस लेवल पे लेके जाओ कि आप अपना माइंड चला सको, या आपको हाथ पैर चलाना पड़ेगा। वर्क तो आपको करना है, चाहे आप स्मार्ट वर्क करो चाहे आप हार्ड वर्क करो। तो हार्ड वर्क ये होगा कि आप खुद कर रहे हो, स्मार्ट वर्क होता है आप दूसरों से करा रहे हो। मेरी नजरिए में वो चीज है। Perfect, perfect. Very nice. You know, smart work is get the work done from by somebody. Hard work is do the work on your own. You know, वो एक टेक अवे है हमारे लिए। हाँ जी। बहुत थैंक यू, दैट्स रियली नाइस। नाइस मैम। डियर मैम, हमने देखा है कि ये जो सीनियर सिटीजन्स है हम्म। तो अपने पास थोड़े थोड़े लोग तो अच्छे एस्टेब्लिश्ड है और सेफ है, अपने पास जेब में पैसे हैं तो आराम का जिंदगी जी रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी, पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन ऐसे थोड़े सीनियर व्यक्ति हैं जो सीनियर उम्र के हैं, बड़े उम्र के हैं, इनके पास एक पैसे भी नहीं है तो एनजीओस में रहते हैं, या अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, या ओल्ड एज होम्स में रह रहे हैं, या ऑन द रोड्स वी फाइंड मेनी ऑफ देम, इन द बस स्टॉप्स, इन द मार्केट। कोई उनका कदर करने वाला नहीं, कोई उनका रिस्पेक्ट करने वाले नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों उनके पास जो पैसे थे वो पूरे अपने फैमिली के ऊपर खर्च कर दिए, या उन लोग कुछ कहीं खर्च कर दिए, कुछ भी नहीं है अभी? तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि भाई जो यूथ लोग हैं अभी, जो अभी अभी कमाने लगे हैं, पैसे कमाने लगे, क्या उनको एक अच्छा सेविंग्स स्टार्ट करनी है अभी, या बहुत दिनों के बाद स्टार्ट करना? तो अभी अभी जब पहला चेक मिला, पहला पे मिला हाथ में, तो तभी से छोटी सी रकम फॉर रिटायरमेंट रखनी है? तो कैन यू जस्ट शेयर समथिंग ऑन दैट? बिल्कुल मैम। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग है ना उसको उड़ाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मेरी फर्स्ट सैलरी आई, मैंने गिफ्ट खरीदे, अपनी फैमिली को दिए, मेरी फैमिली भी खुश, मैं भी खुश, जनरली ये होता है। बट मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि अपने दो अकाउंट्स में मेंटेन करके रखूं। एक में अपना डेली का मतलब कि, और मैं कोशिश करती हूँ मैं अपना खर्चा खुद उठाऊं। बेशक से कोई और दे रहा है, मुझे नहीं पसंद। मुझे मतलब वो खुददारी वाला एक थोड़ा-सा मतलब कि आ जाता है, और अपने पैसे उड़ाने का जो मज़ा है ना, वो दूसरों के पैसे उड़ाने का नहीं है। और साथ में अपना जितना भी आप कमा रहे हो, अगर आप 5000 भी कमा रहे हो, क्योंकि मिनिमम सैलरी होते हैं, मिनिमम सैलरी क्या, मिनिमम आप जैसे ट्यूशन से भी कमा लेते हो 5000, मैं ये बिलीव करती हूँ। तो आप ट्यूशन से भी कमा रहे हो, तो 5000 कमा रहे हो, उसमें से अगर आप 1000 भी ह पर मंथ सेव करके रखते हो, तो एक रिटायरमेंट के टाइम आपका एक अच्छा-सा अमाउंट इतना हो जाएगा कि आप है ना, आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और सेकंड चीज़ इसमें मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी, कई बार पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि वो ना बच्चे की मोह में इतना ज़्यादा आ जाते हैं कि अपनी उस सेविंग्स को है ना बच्चों पे खर्च कर देते हैं। तो एक अपने लिए है ना थोड़ा-सा वो अमाउंट मेंटेन करके चलो कि नहीं, ये तो मुझे सिर्फ़ अपने लिए ही करना है। बच्चे के लिए आप कर रहे हो, अच्छी बात है, बच्चे के लिए एक आप सेपरेट मतलब कि मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अपने लिए जो आपने करना है ना, वो आपके काम आएगा। क्योंकि जो पेरेंट्स गलती करते हैं वो कहाँ पे करते हैं कि मेरे बच्चे ने एफडी माँगी, मैंने एफडी तुड़वा के उसको दे दी। बेसिकली वो सेविंग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने एफडी तुड़वा के बच्चे को दे दी। वो वहाँ पे उनसे मिस्टेक हो जाती है। सब कुछ बच्चों के नाम कर देना, वो वहाँ पे मिस्टेक हो रही है। आपको क्या करना है, जब तक आप हो, तब तक आपकी वो चीज़ है, देन आपके बच्चों की वो चीज़ है। और साथ में आप ये भी उसमें कर सकते हो कि हाँ, आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं है, तो आप पहले से वो विल वगैरह तैयार करके रख सकते हो कि नहीं, मतलब कि ये पार्ट तो मेरा ही रहेगा, मेरे बाद चाहे वो गवर्नमेंट को चला जाए। लेकिन ये मेरे बच्चों को नहीं जाएगा। तो बच्चों को वो जो लालच है, जो क्राइम्स होते हैं ना जनरली, कि हाँ, मतलब कि कई बार मैंने ये देखा है, होना नहीं चाहिए कि अपने पेरेंट्स को भी लोग मतलब कि मार देते हैं, या उनको घर से निकाल देते हैं, या फिर उनको पेपर्स पे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। बहुत सारे लोकल गाँव में ये चीज़ें हो रही हैं कि पेपर्स पे उनको मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है कि हाँ, ये पर्सन एक्जिस्ट नहीं करता। इनकी डेथ हो गई, नकली डेथ सर्टिफिकेट वहाँ पे लगा दिया जाता है। तो वो चीज़ें होनी बंद हो जाएँगी। उनके अंदर वो चीज़ हो जाएगी, हाँ, ये चीज़ें मुझे नहीं मिलनी है। तो अगर आप अकेले भी रहना चाहते हो, आप अकेले रहो। बच्चों के साथ भी आप रहोगे और वो आपकी परवरिश नहीं कर रहे हैं उस तरीके से, तो आपका वो पार्ट है, आपकी वो रकम है कि आप खुद पे खर्च कर सकते हो। एक केयर टेकर आप हायर कर सकते हो उसके बाद। और जो आपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस किया है, तो उससे आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। एक्सपीरियंस, लोगों को बुला सकते हो, लोगों से बातें कर सकते हो, या फिर लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दो, या फिर पोएम्स सुनाना, या सिंगिंग किसी को आती है वो सिंगिंग कर सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारी सच्ची में मन है ना दहल उठता है जब ऐसे-ऐसे पर्सन्स को आप सोशल मीडिया पे देखते हो, जिनको इतनी अच्छी हारमोनियम आती है, गिटार आती है, वायलिन बजा रहे हैं, लेकिन उनकी एज है 78 की, और वो भीख माँग रहे हैं उसको बजा के। तो वो चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती हैं कि मैं ही मतलब कि प्रेफ़र करती हूँ कि ऐसे लोग कोचिंग दे सकते हैं। कहीं पे बैठ के वो वायलिन सिखा सकते हैं, हारमोनियम सिखा सकते हैं, क्योंकि मेरे मन में भी ये आता है, मुझे म्यूज़िक कहीं न कहीं पसंद है थोड़ा बहुत, तो मैं ट्राई करती हूँ सीखने का। तो मैं ये चाहती हूँ कि हाँ, ऐसे लोगों को मैं कॉन्टैक्ट करूँ और उनसे मैं सीखूँ।
और मैं लोगों को भी यही बोलती हूँ कि आप है ना बड़ी-बड़ी एकेडमीज में जाते हो, इधर-उधर जाते हो, तो आप ऐसे लोगों से क्यों नहीं सीख लेते? आपके अगर आस-पास कोई ऐसा पर्सन है जिसको बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, तो उनके लिए भी थोड़ा-सा ये हो जाएगा कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएँगे। तो वो चीज़ें बड़ी मतलब कि मेरा मन करता है कि अगर मेरे आस-पास कोई ऐसा पर्सन हो तो मैं मतलब कि उनसे सीखूँ, बजाए कि बड़ी-बड़ी एकेडमीज़ में जाके। तो वो थोड़ा-सा मैं चेंज करना चाहती हूँ कि हाँ, सेविंग करो, अपने लिए करो, लेकिन अपने लिए ही करो, वो किसी और को मत दो आप। बहुत सारे बच्चे भी लालची होते हैं, कहीं न कहीं, और वो कहीं न कहीं हमारा ही शायद परवरिश का नतीजा होता है कि हम उसको लालची बना देते हैं, हर चीज़ उनकी डिमांड को पूरा कर देते हैं। तो वो नहीं करना उनको, मतलब कि थोड़ा-सा ये होता है, स्ट्रगल करने दो। बच्चा स्ट्रगल से सीखता है। आप बहुत ज़्यादा मतलब कि प्यार करना अच्छा होता है, लाड करना अच्छा नहीं होता, मैं ये मानती हूँ। तो प्यार करो आप, लेकिन उसको लाड में इतना बिगाड़ मत देना कि बाद में आपको ही भारी पड़ जाए वो चीज़ें। तो वो चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में। भावना मैम, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हैं मैम। आपकी जो सोच है एक अलग किस्म की सोच है कि भाई यू हैव सीन समाज में जो हो रही है, अत्याचार हो रही है, जो नेगेटिव्स हो रहे, तो आप उसको बहुत गहराई से देख चुके हैं, तो आपके मन में बहुत अच्छे थॉट्स है, व्यूज है, सजेशंस है, एडवाइस है। दैट इज वेरी नाइस, वंडरफुल। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, यू नो, द वे यू आर शेयरिंग ऑल ऑफ दिस। सुपर, थैंक यू। एक्सीलेंट, दैट्स वेरी नाइस। एंड ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं, और जस्ट स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड उनसे जाके सीखना, उनका मदद भी हो सकता है ऐसा, बड़े बड़े एकेडमीज में जाके ज्वाइन होने, यू कैन जस्ट हेल्प दिस पर्सन, और आपका भी मदद हो जाएगा, नेचुरल टैलेंट सामने आएगी, जी। उनका भी मदद हो जाएगा। तो बहुत खूब मैम। ये सभी लोग बाहर जो है वहां पर, जो हमारे ऑडियंस एंड आवर गेस्ट्स, यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट व्हाट मैडम हैज शेयर्ड नाउ। Encourage others to live and you live. If you find some good talent in somebody, take a training session from them or a class and pay them some amount, let them feel good, and that's how you make the world a beautiful place. And that's a beautiful mindset. And of course, Miss Bhavna, she has a beautiful mind and a beautiful heart, and that is why she's a great psychologist. Yes dear, दूसरे तो मैं तो बहुत इंप्रेस हो गई थी, एकदम इमोशनल भी हो गई कि आप ये सब बातें कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। मैम, द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप, आपके कोई बेस्ट फ्रेंड्स है, उनके नाम बताना चाहेंगे कि आपको जो इस फील्ड के अंदर एनकरेज करे, कर चुके हैं, तो उनका नाम कुछ ऐसे है, एनीबॉडी यू वुड लाइक टू शेयर? यस मैम, एक्चुअली मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है ज्योति यादव करके। तो उसने मेरा फर्स्ट सजेशन दिया था मुझे साइकोलॉजी में आने के लिए, और उसको मेरी फ्रेंड बने हुए अब आई थिंक ऑलमोस्ट 14 या 13 इयर्स होने वाले हैं। तो वो मेरी मतलब कि ये था कि फ्रेंड्स आपको बहुत मिलते हैं, लेकिन जो आपको आगे बढ़ाए लाइफ में, ऐसे बहुत कम फ्रेंड होते हैं, और आपको वो पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके अंदर वो जेलस वाला फैक्टर ना हो, कॉम्पिटिशन वाला फैक्टर ना हो, वो आपके बढ़ने से खुश रहे। और ये मेरे अंदर भी है, मैं उस वो जहाँ तक जाती है ना, वो जितनी ऊँचाई पे जाएगी, मुझे उतनी ही खुशी होगी। कभी भी उसके साथ मुझे जेलस फैक्टर नहीं आता, ना ही उसको मेरे साथ आता। और बहुत बार ये होता है कि हम लोग जैसे मैं बिज़ी होती हूँ, तो मैं वो बहुत सारे मेरे मतलब कि जैसे पढ़ने से रिलेटेड या वैसे कोई हेल्प कर सकती है, तो वो मेरी बहुत हेल्प करती है। और मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं उसकी जितनी भी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो होता है कि आप जब हाथ मिलाते हो, वो फ्रेंडशिप होती है। आपको मतलब कि उसकी हेल्प भी करनी पड़ेगी, आपको हेल्प भी बढ़ सकती है। तो वहाँ पे कोई भी शाइनेस नहीं होती, वहाँ पे कोई भी शर्माना नहीं होता कि हाँ, एक बार के लिए होता है कि हाँ, आप अपनी फैमिली से कभी कोई बात शेयर करना चाहते हो या माँगना चाहते हो कुछ, आपको वो शाइनेस फील होती है। लेकिन वहाँ पे उनके साथ, दोस्तों के साथ नहीं होती। और सबसे अच्छी बात, वो आपकी इमोशनल पार्टनर होता है। जब आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो कि आपको ये लगता है कि नहीं यार, किसी को तो बताना है, किसको बताएँ? घरवालों को बताएँगे तो वो घरवालों में क्या होता है, इधर से उधर फैलती चली जाती है। एक सर्कल बन जाता है, और वो घूम फिर के कि हाँ, बताना नहीं था, लेकिन सबको पता चल गया। कई बार होता है आप दिखाना नहीं चाहते कि आप कितने स्ट्रेस में हो, तो घरवालों के सामने एक वो स्माइलिंग फेस होता है हमेशा। लेकिन एक ऐसा पार्टनर होना, एक ऐसा फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके साथ आप प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाओ। तो वो प्रॉब्लम्स को जब आप शेयर करोगे ना, तो आपकी आधी हीलिंग हो जाती है। जब कोई सुनने वाला होता है, वो बहुत मैटर रखता है, बजाए कि कोई सजेशन देने वाला। और जो अच्छा दोस्त होता है ना, वो आपकी पहले सारी प्रॉब्लम्स को सुनता है, पूरी प्रॉब्लम्स को सुनेगा, वो आपको सजेशन नहीं देगा, बीच में एडवाइस नहीं देगा। जैसे जनरली होता है कि पेरेंट्स, घर वाले या टीचर्स, वो जनरली आपको सजेशन देते हैं। आपने यहाँ पे गलती कर दी, आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं चाहिए। आपको एक पर्सन चाहिए जो आपकी आधी हीलिंग कर सके। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी पूरी बातें सुन रहा है।
और लकीली मेरे पास ऐसे मेरे 1 या 2 फ्रेंड हैं। और उसके अलावा मतलब कि मेरी सिस्टर का बड़ा रोल रहा है इस जर्नी में, पूरी जर्नी में, क्योंकि जब भी मैं उसको देखती हूँ तो मुझे लगता है एक मोटिवेशन मिलती है कि नहीं यार, मुझे वो जिस लेवल पे है उतना ही आगे मुझे जाना है। हालाँकि वो कॉमर्स फील्ड में है, बट एक उसको देख के ये लगता है कि नहीं यार, वो ऑल-राउंडर है, सब कुछ उसमें परफेक्शन के साथ आता है, सब कुछ अच्छा आता है। तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जब भी ये होता है कि हाँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही या कोई ऑब्स्टेकल आता है, मैं टैकल नहीं कर सकती, तो मुझे ये होता है कि नहीं यार, मैं उसको कॉल करूँगी और कोई है मेरी सपोर्ट में जो मतलब कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देगा। एक वो बैक सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। कि जब आपको ये लगता है कि नहीं, अगर आप हार गए, ये रिस्क लिया आपने, या आप हार गए, तो आपको सपोर्ट कौन करेगा पीछे से? तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो मेरा सपोर्ट है, बैक सपोर्ट है कि रीढ़ की हड्डी आप बोल सकते हो उसको। ठीक है कि आप अगर हार जाओगे तो वो सँभाल लेगी। तो वो चीज़ें होनी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं। और बाकी अपने बच्चों को देख के आपको हमेशा पॉज़िटिविटी मिलती है, अपनी फैमिली को देख के आपको पॉज़िटिविटी मिलती है। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव है इसमें, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं बोला कि हाँ, आपको आगे नहीं पढ़ना, कह रहे नहीं आप पढ़ो। और एक वो हस्बैंड का सपोर्ट होना, फैमिली का सपोर्ट होना, पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा हाँ, 1-2 जो मुझे नाम लेने हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड का, जिन्होंने मेरे को इस फील्ड में लेके आई और इतना अच्छा सजेशन दिया। हालाँकि वो खुद अभी कॉमर्स बैकग्राउंड में है, वो कह रही कि नहीं यार, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ें हैं, बट अच्छा लगता है कि यार ऐसे आपके पास दोस्त हैं, तो 1-2 फ्रेंड्स रखो, बहुत ज़्यादा आपको रखने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, आपके पास 100 फ्रेंड है, 200 फ्रेंड है जो आपके साथ पार्टी कर रहे हैं। ऐसे फ्रेंड मैं सजेस्ट नहीं करती। 1-2 फ्रेंड्स हो जो आपको सुन सकें, जो आपकी हीलिंग कर सकें। ऐसा होना बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स में इमोशनली रूप से आपके साथ खड़े हैं। फाइनेंशियली ना सही, लेकिन इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है उस वक़्त। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे सुसाइड करते हुए भी देखा है जो फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो इमोशनली, मेंटली आप कितना टैकल कर सकते हो किसी भी स्ट्रेस को, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे फ्रेंड रखो अपने साथ। सुपर सुपर मैम, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक बहुत बहुत अच्छा शेयर करे आज। विद फ्रेंडशिप, एक अच्छा दोस्त पहले सुनता है। ही और शी डायरेक्टली डजंट गिव सजेशन, एडवाइस नहीं देते, पहले सुनते हैं आपके प्रॉब्लम। और दूसरी अच्छी बात, आपने बहुत सारी अच्छी बातें आपने बोला। आई जस्ट लाइक टू पुट टू आउट बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। सो अभी एक बात जो बोले कि भाई पैसे है तो भी सुसाइड कर लिए बहुत सारे लोग, क्योंकि उनका मन में दुख था, उनके इमोशंस हर्ट थे। कोई नहीं था फ्रेंड्स शेयर करने के लिए, कोई उनके जिंदगी में सही लोग नहीं थे, सही फ्रेंड्स। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैसा कम्स नेक्स्ट, यू नीड समबडी टू शेयर। यस, एंड आपने बोला अपनी बहन भी है, शी इज देयर। तो आप बड़े खुश नसीब है कि अपनी बहन अपने, शी इज योर सपोर्ट, योर फैमिली, योर हस्बैंड, योर चाइल्ड, दैट्स रियली नाइस। और सभी आपके फ्रेंड्स या सभी आपके साथियों को, आपके फैमिली मेंबर्स को लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम द इंटरनेशनल फैब टॉक्स। यू। यस, आपकी बहन को भी। बिकॉज व्हेन शी यू से सिस्टर, आई थिंक ऑफ माई सिस्टर। हम उतने खुश नसीब नहीं है जितने आप है, जितना सपोर्ट आपको मिल रही है उतना सपोर्ट शायद हमारी बहन से हमको मिल गए, तो आज हम इस मंच पर उनका भी कदर करते थे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जेलसी फैक्टर में जी। वहां पर डाउन हो जाते हैं। Dear friends, there was a slight technical issue from my side, and so we get connected again with our celebrity, Mrs. Bhavna Chillar Lakra from Delhi. Dear friends, we asked our guest, our celebrity, what is her favorite color and why? मैम, आपका फेवरेट कलर और क्यों पसंद है वो फेवरेट कलर? बेसिकली मुझे बचपन से स्काई ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है। और उसका एक रीज़न ये भी है कि जब आप आसमान को देखते हो ना, तो मुझे सिर्फ़ वही लिमिट नज़र आती है। मुझे उसके अलावा अपनी लाइफ़ में कोई लिमिट नहीं नज़र आती। मुझे ये होता है कि नहीं, वहाँ तक आप जा सकते हो। तो एक ये होता है ना कि लोग कुएँ का मेंढक बन के बैठ जाते हैं कि नहीं यार, आपने कम्फ़र्ट ज़ोन में कि यही मेरी लिमिट है, यहीं तक मुझे रहना है, कि नहीं मुझे वहीं तक नहीं रहना, वहाँ तक आपको जाना है। तो आप वहाँ तक जा सकते हो। उसके अलावा कोई लिमिट नहीं है। और आसमान को देख के अच्छा लगता है। स्काई ब्लू मुझे बचपन से ही अच्छा, मतलब कि एक बचपन से देखती थी, अच्छा लगता है बस। उसका जी कोई जी स्पेसिफिक रीज़न नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, अच्छा लगता है बस। जी। मुझे हंसी आ रही है कि आपने बोला, मैंने पहली बार सुन रही हूँ मैं कि भाई मेंढक बन के मत बैठ जाओ, कि बहुत सारे लोग ऐसे बैठ जाते हैं। कभी कभी मैं बिल्कुल। भी बैठ जाती हूँ, कुछ काम वाम कुछ भी नहीं करती, बस ऐसा। तो फिर नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं, हाँ। एंग्जाइटी स्ट्रेस हो जाती है, जैसे आपके साथ होता है कि भाई खाली हुँ, हुँ। नहीं बैठना है, मेंढक जी। की तरह नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ तो करना है आगे। हाँ। कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। यू ऑलवेज कीप मूविंग, सो वेरी नाइस, आई रियली लाइक द वे यू पुट दैट। थोड़े यस टाइम के लिए आप रेस्ट कर सकते हो और वो ज़रूरी भी है अपने मेंटल पीस के लिए, लेकिन वो है ना खुद को डेवलप करने के लिए होना चाहिए।
कि आप शांति से बैठ के देखो कि मेरी फॉल्ट कहाँ आ रही है, गलतियां कहाँ पे हो रही है, कहाँ से, और इसको मैं इम्प्रूव कैसे करूँ। जी तो जी जब आप थोड़ी देर के लिए शांति से बैठते हो ना, वो चीजों का आंसर भी आपको मिलता है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन उसके अलावा भी मतलब ये नहीं कि परमानेंट नहीं बैठना, ये नहीं जी बैठने की सिर्फ सोचते ही रहना है, परमानेंट जी वहां पे बैठ जाओ और उस पर एग्जीक्यूशन नहीं होना, तो वो नहीं करना, एग्जीक्यूट भी करना है उस चीज को, तो वो बहुत जरूरी है। जी मैम, वेरी नाइस। जी मैम, अभी हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यू नो, विल आस्क यू अ स्मॉल थिंग। आपका फेवरेट मुहावरा या फेवरेट कोटेशन या प्रोवर्ब, हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आप प्रभावित हो गए ना, तो हमको भी शेयर कर दीजिए कि भाई हम भी उससे प्रभावित हो जाएं। एक्चुअली एक सजेशन है सोसाइटी के लिए, जियो और जीने दो। हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो दूसरों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये कई बार आपने अपने वो चार लोगों के बारे में सुना होगा, हमारी सोसाइटी में बहुत होते हैं, चार लोग होते हैं जो ये हमेशा ये बोलते हैं, जो दूसरों की रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं। चार लोग क्या कहेंगे अगर आप ये काम करोगे, तो जनरली ये हमने सुना है। तो वो चार लोगों को मेरा सजेशन है, जियो और जीने दो, कि आप खुद भी आगे बढ़ो, और आपको लगता है आप नहीं कर सकते, वही चीज आप दूसरों को सजेस्ट करते हो कि नहीं आप लोग भी नहीं कर सकते, मैं आगे बढ़ रही हूँ, चार लोग मुझे बोलेंगे कि आप नहीं कर पाओगे, वो उनकी लिमिटेशन है, हमारी नहीं है। उनको नहीं पता हम कहाँ तक बढ़ सकते हैं। तो जो लोग ये सोच के रुक जाते हैं कि चार लोग क्या बोलेंगे, तो उनके लिए सजेशन है कि आगे बढ़ो। हाँ, जो चार लोग हैं उनको मैंने बोल दिया, जियो और जीने दो। खुद भी आगे बढ़ो, और नहीं बढ़ सकते तो ठीक है, आप वहां पे ठहर जाओ, मुझे आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, आप हमारी लाइफ में मतलब कि दखल देना बंद करो, तो आगे बढ़ना है। और दखल नहीं देना किसी की लाइफ में, अपने पे भी अप्लाई होता है, हमें भी वो चार लोगों की श्रेणी में नहीं आना जो हम दूसरों को रोके, उसमें नहीं आना है। वंडरफुल वंडरफुल, आई लव दिस मैम, लिव एंड लेट लिव, बिल्कुल। राइट। ये तो मेरे फेसबुक स्टेटस पे है, बहुत सालों से मैंने डाला, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ये मैं आई थिंक पिछले 7-8 साल से यूज कर रही हूँ अपने, मतलब कि मेरे है ना मुंह पे रखा रहता है, जो हम होते हैं ना कि हमेशा मुंह पे रखा रहता है कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जियो और जीने दो, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, कोई मुझे ना करे। हाँ करे, वो सही हाँ, बात है। ये चीज चाहिए लाइफ में, पीस मिल जाता है वहां से बस। वेरी नाइस मैम, बहुत रेजोनेट, आई कैन रेजोनेट अ लॉट विद यू, दैट्स वेरी नाइस। तो इतनी कम उम्र में आप इतना बड़ा बड़ा सोच रखते हैं कि भाई, इतना अच्छा, बहुत कम लोग इस लेवल पर रहते हैं ना, मैंने देखा बहुत कम लोग खुद के बारे में बोलना, या यू आर अवेयर ऑफ द सोसाइटी कि भाई समाज में क्या हो रहा है, इंसानियत जो है वो चीज क्या है, इंसान का मन कैसा है, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ knowledge in that, and you have experienced many things, you're talking from the depth of experience and learning, so that's very nice. अब और मैं क्या कह सकती हूँ आपके बारे में, एक अच्छा ऑब्जर्वर हो आप, तो जब बाहर जाते हैं या घर में रहते हैं तो आप कीनली ऑब्जर्व करते हो कि भाई लोग कैसे हैं, यू गॉट, आपका प्रोफाइल जब पढ़ा मैंने कि भाई आई एम इंटरेस्टेड इन द ह्यूमन बिहेवियर, बिल्कुल। यस, सो दैट्स वेरी नाइस, वेरी जेन्युइन। डियर मैम, इतना सब हासिल कर चुके हैं और आगे भी करने वाले हैं बहुत कुछ, तो हम आपका वी गिव यू अ लॉट ऑफ बेस्ट विशेस टू अचीव मोर। लेकिन ये पूछना चाहेंगे भाई कि आज तक आपने इतने, इन सभी अचीवमेंट्स में आपको सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, वाओ दिस इज माय ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, प्राउड मोमेंट, कौन सा था मैम? एक्चुअली दो ऐसे प्राउड मोमेंट रहे हैं अब तक। फर्स्ट मैं शेयर करूंगी, जब मैं शायद 7th क्लास में थी, और एनुअल फंक्शन के दिन मैंने, मेरी सिस्टर ने और मेरे ब्रदर ने, हम तीन मतलब भाई बहन हैं, और हम तीनों ने स्टेज शेयर किया था, तीनों को सेम टाइम पे अवार्ड मिला था, और मेरे पेरेंट्स को वहाँ पे इनवाइट किया गया था। इवन बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स वहाँ पे थे, और उनके तीनों बच्चों को अवार्ड मिलना एक ही टाइम पे, तो वो आई थिंक मेरे मतलब कि पेरेंट्स की नजर में जब वो देखना होता है ना कि हाँ, उनको बड़ी प्राउड फीलिंग आती है कि हाँ मेरे तीनों बच्चे मतलब कि यहाँ पे उनको अवार्ड मिल रहा है, तो वो फर्स्ट मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। ये 7th क्लास का है। और एक अब क्योंकि बीच में मेरे साथ भी हुआ था, मैं ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी बीच में, आज से 3 साल पहले की बात है। और उसके बाद वहां से वापस निकल के आना उससे, और अब ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम्स बहुत माइनर थी, मैं खाली थी उस वक्त, शायद इसलिए मैं डिप्रेशन में गई। तो मैं इसलिए लोगों को सजेस्ट करती हूँ, कभी भी खाली मत बैठना, एक गोल है ना आपकी लाइफ में होना चाहिए, तो वो गोल बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप है ना उसको एकम्प्लिश करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए जो मेहनत करते हो, वो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होती है, वो आपको ना बिजी रखती है। और जब आप खाली हो जाओगे तो आपका माइंड जो है वो नेगेटिव थॉट से भर जाता है,
तो नेगेटिव थॉट से बाहर आना और डिप्रेशन से बाहर निकलना, वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। क्योंकि वंडरफुल। वहां से अब बहुत छोटी लगती है वो चीजें, अब मेरे को हंसी आती है उन चीज़ों पे, यार इस चीज की वजह से मैं मतलब डिप्रेशन में चली गई। अरे लगता है नहीं यार, वही होता है ना, फाइट मोड की बजाय फ्लाइट मोड में मैं पहुंच गई थी शायद उस वक्त, कि मैं नहीं हैंडल कर सकती, वो चीजें हो जाती हैं कई बार लाइफ में। तो वहां पे फाइट मोड पे जाना है, अपने को बिजी रखना है, तो वो चीजें हो सकती एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो आपने कहा कि मी एंड माय ब्रदर एंड सिस्टर, सबको है। तीन, बिल्कुल। ऑल ऑफ अस गॉट द अवार्ड ऑन दैट डे। हमारे पेरेंट्स ने देखा। तुम जब अब ये शेयर कर रहे थे ना, तो मेरे को वो विजुलाइज कर रही थी कि मंच पर ऐसे है, तीनों भी आके अपने प्राइजेस ले रहे हैं और मम्मी और डैडी बैठे। तो वो दृश्य ऐसा एकदम फ्लैश हुआ हमारी नजर के सामने। वो तो एक बहुत अच्छी फीलिंग है, द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड फॉर पेरेंट्स टू सी ऑल देयर चिल्ड्रन गेटिंग रिवॉर्डेड, गेटिंग रिकॉग्निशन। एक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है वो, है ना? बिल्कुल। वेरी नाइस। डियर मैम, आपके घर में कोई पेट्स है, जैसे छोटी सी बिल्ली एक्चुअली हो या पापी हो, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं भी नहीं है, पसंद? क्योंकि मुझे बेसिकली एलर्जी है, जो फर होते हैं ना, मतलब कि डॉग्स के, जी। कैट्स के, उनसे मुझे थोड़ा सा एलर्जी है, इवन मुझे डस्ट एलर्जी भी है। तो अच्छा। इस वजह से मैं नहीं रखती हूँ। अदरवाइज मुझे बचपन में बहुत अच्छे लगते थे। मेरी मम्मी थोड़ा सा दूर रखती थी मुझे उनसे, कह रहे कि नहीं, क्योंकि मुझे एलर्जी थी, मेरा इश्यू था। अदरवाइज मुझे बहुत पसंद है। बट मुझे ये लगता है कि हाँ, मैं पर्सनली उनकी केयर नहीं कर सकती, कि ऐसा मेरी मॉम का मानना है, कह रहे तुम लोग अपनी केयर कर लो, वही बहुत है। तो उसके बाद जब अपने आप मतलब कि सब कुछ करना सीख जाओ ना, उसके बाद मतलब पेट पे ध्यान देना, कि पेट की है ना अपने आप से भी ज्यादा केयर होती है। कि जितना आप खुद को मेंटेन करने में टाइम लगाते हो ना, पेट को मेंटेन करने में उससे ज्यादा टाइम लगता है। तो जी। जब अपना काम ठीक से करना सीख जाओ, देन आप पेट मतलब कि रख लेना अपने घर पे। और दूसरा डस्ट एलर्जी और ये फर वाली जो एलर्जी है मुझे, उसकी वजह से मैं नहीं रखती हूँ। लेकिन हाँ, मेरा बच्चा अगर रखना चाहेगा फ्यूचर में, तो मैं उसको नहीं रोकूंगी, आप हाउ रख सकते हो। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, दैट्स रियली नाइस। वेरी गुड। डियर मैम, मेरे हाथ में एक छोटी सी कप है, तो आप बिल्कुल। इसको कैसे देखेंगे? हाफ फुल है, हाफ एम्प्टी है? हाँ, फुल। वन हमेशा अपनी लाइफ में अपनी स्ट्रेंथ को ज्यादा देखो, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव साइकोलॉजी एक होती है हमारी, कि जो चीजें जितनी है ना, उसको मतलब कि यूज करो, बजाय कि ये देखना कि कितना खालीपन है, कितनी वीकनेस है। वीकनेस को हमने नजरअंदाज कर देना है कुछ टाइम के लिए, अपनी पॉजिटिव चीजों को आपने देखना है। आपके अंदर भी बहुत सारी वीकनेस होती है, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होती है, तो अपनी स्ट्रेंथ पे आपने फोकस करना है। आपको आगे लाइफ में बढ़ाने के लिए आपकी स्ट्रेंथ जरूरी है। अपनी वीकनेस को एक टाइम के लिए साइड में रख दो, कि नहीं, हमें वीकनेस को देखना ही नहीं है। क्यों देखना है? नेगेटिव थॉट आएंगे, देखो ही मत उसको। ठीक है, अपनी एक्सेप्ट करो, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट करते हो, अपनी स्ट्रेंथ को ना देखना, वो भी गलत है। तो अपनी स्ट्रेंथ को देखो, पहले पहले अपनी स्ट्रेंथ को देखना है। क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो बात की चीज है। पहले अपनी स्ट्रेंथ को देखो। हाफ फुल वो ज्यादा मायने रखता है, कि हाँ, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है अभी, इतना मेंटेन किया हुआ है, तो उससे मैं क्या कर सकती हूँ। बजाय कि हाँ, इतना नहीं है यार, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, इतना बजट तो नहीं है, बजट से तो कम जा रहा है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, मूवी प्रोड्यूस ना कर पाते। क्योंकि कभी भी अप टू द मार्क जितना हम लेवल सेट करके चलते हैं ना, उतना नहीं मिलता। लाइफ का भी यही रोल है, आपको उतना नहीं मिलता जो आप चाहते हो। भगवान की जो मर्जी होती है, भगवान ने जो आपके लिए डिसाइड किया होता है ना, वो आपको मिलता है, जो आपके लिए बेस्ट होता है। जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा, जो मेरे लिए बेस्ट है वो भगवान मुझे देंगे। या ईश्वर आपको देगा, या अल्लाह आपको देगा। जी जी, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग, दैट्स रियली नाइस। डियर मैम, हिंदी के अलावा, इंग्लिश के अलावा और कोई भाषाएं आती हैं आपको? एक्चुअली मुझे हरियाणवी आती है, हरियाणवी क्योंकि मेरी नेटिव लैंग्वेज है। और इसके अलावा पंजाबी में थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ। तो पंजाबी और थोड़ा बहुत आई थिंक मारवाड़ी। तो ये लैंग्वेज हम्म। में थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग स्टेट से आते हैं। तो कुछ लोग असम से भी हैं, तो असमीज भी मैं उनसे थोड़ा बहुत सीखने की ट्राई करती हूँ। कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं, एक दो मतलब कि जम्मू से भी हैं। तो उनसे थोड़ा थोड़ा मुझे सीखने को मिलता है। तो थोड़ा बहुत मतलब कि लिटिल बिट में ट्राई करती हूँ, कि हाँ, सीख लूँ। थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ भी, आपको पता होना चाहिए, कि एटलीस्ट उनको मतलब कि आप नमस्ते भी बोल पाते हैं उनकी लैंग्वेज में, तो वो बहुत अच्छा फील करते हैं उस चीज में। वेरी वो नाइस, अच्छा लगता है। ग्रेट, दैट्स रियली नाइस। आपके स्टूडेंट से आप सीख रहे हैं उनके भाषा, कश्मीरी बिल्कुल। हो या आसामीज हो, मराठी, मारवाड़ी, हरियाणवी तो है ही है। एंड बिल्कुल। देन व्हाट इज दिस, द अदर पंजाबी। लैंग्वेज? या अभी पंजाबी आपने हाँ बोला, जी। राइट? मैम, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे लिए एक छोटी सी गाना गा सकते हैं आप? एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, अब इतने सारे लैंग्वेजेस बोल दिए,
तो एनी वन कंफर्टेबल लैंग्वेज में एक छोटी सी गाना, मेरी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अगर मैं गाऊंगी ना यहाँ पे। छोटी सी 2 लाइन बस। बॉर्डर गाना, बॉर्डर मूवी से गाना गा दीजिए। बॉर्डर मूवी से नहीं, बॉर्डर मूवी का भी आता है, लेकिन एक गाना है जो मैं उपकार मूवी का यहाँ पे मतलब कि गाऊंगी। जी। कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं, नातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे वादे हैं, वादों का क्या कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या होगा मसीहा, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। बस। Oh, thank you so much, ma'am. Thank you very, very much. बहुत खूब, that's very nice. Thanks for obliging. तो कभी कभी मुझे बुरा लगता है कि मैं प्रेशर करती हूँ थोड़ा सेलिब्रिटीज को, तो प्लीज आप गा दीजिए। तो थैंक यू फॉर ऑब्लाइजिंग, थैंक यू, Thank यू sang वेरी नाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और इसका मतलब भी बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। बिल्कुल। यस डियर। डियर मैम, अभी मेन राउंड ऑफ इंटरव्यू तो खत्म हो चुकी है, अब छोटी सी राउंड ऑफ इंटरव्यू है, उसको क्या हम कहते हैं, रैपिड फायर राउंड। बिल्कुल। Okay, in the rapid fire round, we will ask you questions जहां पर आंसर्स 1 word या 2 words में रहती, छोटी आंसर्स रहती, ओके 1 word और 2 words। Dear friends, we've taken a lot of time from our beautiful guest. मैम दोबारा हम इस मंच पर आपको बुलाएंगे, जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास थैंक यू। खजाना है, वो तो मैं जान चुकी हूँ, इस 1 घंटे में, इन 1 hour। ऑनर मैम, आप जब बुलाओगे बिल्कुल टाइम हाँ, निकालेंगे। यू हैव लॉट ऑफ कंटेंट विद यू, लवली कंटेंट, और जैसे आप शेयर कर रहे हैं ना, तो और सुनने का दिल बोलता है कि भाई बैठ के सुने, या किसी का व्हाट यू से, हमारे दर्शकों का भी भला हो उसमें, तो ऐसे वाले कंटेंट आपके साथ, आपके पास बहुत है, दैट इज वेरी नाइस। थैंक यू मैम। Yes, dear. So, dear friends, we'll go ahead with the rapid fire round. We'll get to know about our guest, our celebrity, about her likes and dislikes, and about her thoughts and views on life. So, dear friends, let's go ahead. मैम, पहला क्वेश्चन ये है, अगर भगवान ने आपको एक सुपर पावर चुनने की यू नो वर दिया, गिव यू अ बून और अ विश गिफ्ट, आप कौन सा सुपर पावर आपके हाथ में हो, यस ये शक्ति मुझे चाहिए। दूसरों के माइंड से ना स्ट्रेस खींचने की। राइट, आपने इससे पहले भी बता दिया था, मुझे मालूम है जी। सेकेंड क्वेश्चन मैम, रेड फ्लैग्स जो है ना, रेड फ्लैग्स जो डेंजर है, ये डेंजर है रेड फ्लैग, तो इससे सतर्क रहना, तो ऐसे 2 रेड फ्लैग्स हमें बताइए। एक तो अकेले रहने से आपका स्ट्रेस बढ़ता है बहुत ज्यादा, और दूसरा अपनी हॉबीज को परस्यू ना करने से, कि आप अपनी हॉबीज को आप करना छोड़ देते हो ना, वहां पे आपको फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपका मेंटल पीस बहुत जरूरी है। जब आप अपनी हॉबीज कर रहे हो, आपको वहां पे मतलब कि एक थोड़ा सा शांति फील होती है, और आपकी डेली लाइफ के लिए वो बहुत जरूरी है। वेरी नाइस। तो अकेलेपन में मत रहिए, किसी बिल्कुल। से मिलिए, बात करिए, तो बात। दैट्स वेरी नाइस। डियर मैम, आगे आने वाले 50 सालों में किस तरह के बदलाव होंगे, एनी 2 changes? मुझे लगता है कि पर्सनली कि डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ई बुक बहुत ज्यादा मतलब बढ़ जाएंगी, पेपर बुक आनी बंद हो जाएंगी आफ्टर 50 ईयर। और अच्छा भी है, बट एक नेगेटिव इफेक्ट भी है उसका, क्योंकि आपकी जो आंखों की रोशनी है ना कहीं उसकी वजह से मतलब डाउन चली जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो मुझे थोड़ा सा मतलब कि उसके लिए थोड़ा सा मतलब कि ध्यान देने की जरूरत है, कि ऐसा कुछ या तो मतलब कि लैपटॉप्स या बुक्स वगैरह, अब हालांकि चेंजेस आ रहे हैं, बट वो आंखों पे उतनी ज्यादा अफेक्ट ना डालें, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। सेकंड, आपका हो सकता है कि मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा अवेयर हो जाएंगे। अभी वैसा नहीं है, आज से मतलब 10 साल पहले अगर मैं देखूं, हमारे स्कूल्स में साइकोलॉजी नहीं थी, अभी आई है, 1-2 साल में ही आई है, 1 या 2 या 3 साल हुए होंगे, उससे पहले नहीं थी। तो मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा अवेयर हो जाएंगे, तो ये 2 बदलाव मुझे नजर आते हैं अगले 50 सालों में। ग्रेट, ग्रेट। डियर मैम, अगर आपके हाथ में एक टाइम मशीन दिए और आपको एक बटन दबानी है
और वो बटन दबाने से आप पुराने जमाने में चले जाएंगे, वहां पर जाके किसी और का जिंदगी जीनी पड़ेगी, वो कौन चुनेंगे? विच पर्सनालिटी वुड लव टू लिव एज, रीलिव? मुझे बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका जो नेचर है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मिसाइल मैन थे या उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, उसके अलावा जो उनका बात करने का तरीका था, जो उनका थॉट्स थे, मुझे उनके थॉट्स बहुत पसंद है, कि जो हमेशा वो पॉजिटिव देखते थे और हमेशा ये कि बैठना नहीं है, खाली नहीं बैठना, काम करते रहना है। और जिस दिन मतलब मेरी डेथ हो, उस दिन मैं चाहता हूँ कि उस दिन का अवकाश ना दिया जाए, उस दिन की मतलब कि एक्स्ट्रा काम किया जाए। तो वो थॉट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके। और सेकंड, अगर अभी का टाइम मिल जाए मुझे, जैसे मुझे अनुष्का शर्मा की जो वो है ना, मतलब चुलबुलापन है, थोड़ा सा मतलब फ्रीडम नेचर है, या फिर वो ये नहीं सोच रहा कि मैं इस ओहदे पे हूँ तो अपनी लाइफ एंजॉय करना भूल जाऊँ। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो ना हर अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाती है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को ना अपनी सारी थॉट्स को भूल के, या फिर हम इस ओहदे पे बैठे हैं, हम एंजॉय नहीं कर सकते, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आप मतलब बुढ़ापे में भी एंजॉय कर सकते हो अपनी, आप कोई भी पर्सनैलिटी हो, आप एंजॉय कर सकते हो। तो अपनी लाइफ में ना वो एंजॉयमेंट का वो नेचर रखना बहुत जरूरी होता है। आपको शांति मिलती है, अच्छा भी लगता है, इवन आप एंजॉय करते हो, स्ट्रेस तो होता ही नहीं है फिर। यस डियर, वंडरफुल, दैट्स रियली नाइस। डियर मैम, आप दूसरों को माफ करते हैं आसानी से, हाँ या ना? हाँ, 99.5 टाइम्स। ओके, सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 9.5 या 9.9, 9.95, हाँ, 9.95। 9.95, 9.9, 9 हाँ, समवेयर 9 to 10 के बीच में रख देंगे, ठीक है ना? क्योंकि ये होता है कि जब हम किसी को माफ नहीं कर पाते ना, तो हम कहीं ना कहीं ना परेशान रहते हैं, हम भी जी खुद जी मतलब स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये चलता है कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया। जी जी क्योंकि अगर हम ये सोचते रहेंगे सामने वाले ने आपके साथ कैसा किया, हम जी अपना भी पीस को कहीं ना कहीं है ना, मतलब कि परेशान कर रहे हैं, तो वो पीस रखना बहुत जरूरी है। और पीस आप तब रख पाओगे तब आप फॉरगिव नेचर होगा। जी फॉरगॉट मत करो, भूलो मत कि उन्होंने क्या किया, लेकिन आप दूसरों को चांसेस दे सकते हो, या फिर आप उस चीज को भूल सकते हो, ताकि अगर आप भूलोगे ना उस चीज को, तभी आप अपनी पीस को मेंटेन कर पाओगे। और मैं किसी के हाथ में अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील नहीं देना चाहती कि कोई मुझे उस तरीके से चलाए कि मेरे माइंड में स्ट्रेस हो, अब नहीं है, अब है, अब नहीं है, वो चीजें मुझे नहीं चाहिए। तो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मुझे खुद के हाथ में रखना है। वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल। डियर मैम, केक्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, आइसक्रीम। समर, विंटर, रेनी और स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग। लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर। सिटी, विलेज और टाउन? विलेज। When you help others, do you expect something in return? न। Idea of a perfect day in one word. एंजॉयमेंट। Oh, great, wonderful. आप अच्छा पकाती हैं? हाँ, हाँ या ठीक ना? ठाक, ठीक हाँ ठाक। जो चीजें मुझे आती है वो बहुत अच्छा पका लेती हूँ, जो मुझे नहीं पसंद होती वहां पे सिर्फ मैं लोगों को पका सकती हूँ। जी जी मैम, आपका फेवरेट रेसिपी का नाम? आलू का पराठा। आपका फेवरेट टीचर का नाम? सुरेश झाकर मैम। एंड सेकंड वन इज नगमा जावेद मैम, जो ओके। मुझे इंटर्नशिप में मिली थी अपनी साइकोलॉजी के दौरान। और उन्होंने मेरा लाइफ को जीने का तरीका बहुत पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि टेंशन से फ्री कैसे रहा जाए, उन्होंने मेरे साथ होते हुए मुझे ये दिखा दिया कि हाँ, आप कैसे टेंशन फ्री रह सकते हो। उन्होंने कभी मुझे गाइड नहीं किया इस तरीके से कि हाँ, उन्होंने ये बताया कि आपको ये करना है, नहीं, आप उनको देख के सीख जाते हो। तो ओह वो मुझे ग्रेट। बड़ा अच्छा लगता है उनके बारे में। और ये सुरेश झाकर मैम मेरी संस्कृत की मैम थी क्लास 9th के अंदर। तो वो मुझे एक बात बोलते थे कि टीचर अगर दमदार होता है ना, तो बच्चा बहुत अटेंटिव होकर सुनता है। सब्जेक्ट किसी का फेवरेट नहीं होता, टीचर फेवरेट होती है, इसलिए वो सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है उस सुपर बच्चे का। सुपर। जो आपने कहा ना, वो सही, 100%, not 100,000%. So teachers out there, take care of your students. Let your students love and like you for who you are. Then they will score good marks. जी। You have lots of brains and lots of knowledge. Smart. Very nice. मैम, आप सुबह में उठती हैं या देर रात तक जागते हैं? कैसा, अर्ली बर्ड, नाइट आउल? आई थिंक नाइट आउल, बिकॉज मेरे हस्बैंड की जो ड्यूटी है वो इस टाइप की है कि वो रात को 12 या 12:30 बजे तक आते हैं, और उस वजह से मेरा बच्चा भी वेट करता है तब तक। ओके। तो 1-1:30 बजे से पहले वो नहीं सोता। मेरा टाइम है 2 बजे सोने का और सुबह 8 बजे उठने का। बट हाँ, जैसे मैं अपने घर पे जाती हूँ, मायके चली जाती हूँ, तो वहां पे ये होता है कि मैं 10 बजे सो जाती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ। तो मेरे दोनों ही है, मतलब कि वो बैलेंस करके चलते हैं। तब मैं अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान देती हूँ। हाँ, अभी थोड़ा सा ये हो जाता है कि यहाँ पे
8 बजे उठना पड़ता है। तो लेकिन हाँ, मैं अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ, अपने 8 घंटे की नींद मुझे पूरी करनी होती है, तो वो तो मैं लेती हूँ। दोपहर में चाहे अगर मेरे को टाइम मिल रहा है तो आधा घंटा, 1 घंटा उसमें भी मैं मतलब कि सोने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। Yes, dear. Salty, sweet or spicy food? स्वीट, Me too. बहुत ज़्यादा। Yeah. Is it money, happiness, or both? आई थिंक बोथ। Perfect. मीन इनके अगर ऊपर हाँ बिफोर 20 इयर्स अगर किसी की एज है, उससे आप पूछोगे तो उसको आई थिंक किसी को मनी पसंद होगा, किसी को हैप्पीनेस पसंद होगी, क्योंकि लाइफ जीने के लिए ना आपको दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं। कि जब तक आपके पास मनी नहीं होगा ना, आप एक नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पाओगे। तो नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए आपको मनी जरूरी है। तो हमेशा प्रे करती हूँ कि भगवान इतना दे कि मेरी नॉर्मल लाइफ बहुत अच्छे से गुजर जाए, लेकिन उससे ऊपर मुझे नहीं चाहिए। मैं साथ में उनको ये भी मेंशन करती हूँ, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, इतना दे दो। और हैप्पीनेस तो जरूरी है ही। और ये होता है कि हैप्पीनेस भी जरूरी है, लेकिन साथ में ये होता है ना, प्रॉब्लम्स आती है, वो आपको सिखाती है कि मीठे का स्वाद कैसा होता है। जब आप जी नमकीन टेस्ट करोगे तभी मीठे का स्वाद आपको पसंद आएगा। तो हैप्पीनेस बहुत चाहिए मुझे, हैप्पीनेस भी चाहिए, मनी भी चाहिए, दोनों चाहिए। दोनों चीजें जरूरी है लाइफ के लिए, प्रैक्टिकली सोचोगे तो। यस डियर परफेक्ट। डियर मैम, आप जब भी अकेले रहते हैं तो आप कोई भी नहीं है आपके साथ, कोई मोबाइल इंटरनेट कुछ भी नहीं है, बस आप हैं, कोई किताब भी नहीं है आपके पास, एक खाली रूम में बैठे हैं, तो आप अपने थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तब आप और अपने मन दोनों बातें खुद से हाँ जी। बातें करना या खुद यहाँ पर होंगे, तो हम्म। तब आपका जो सोच कहाँ पर ले जाती है आपको, पुराने जमाने में या तो आगे फ्यूचर में ले जाती है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कहाँ पर रहती है ज्यादा? मैं हमेशा पुराने टाइम के बारे में सोचती हूँ, और मुझे रेट्रो सॉन्ग बहुत पसंद है। तो जब मैं अकेली होती हूँ ना, तो मैं रेट्रो सॉन्ग चलाती हूँ, और उनको चला के मतलब उनके जो लिरिक्स होते हैं ना, वो लाइफ में आपको बहुत चीजें सिखा जाते हैं। तो मुझे वो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। साथ में थोड़ा सा पीस भी मिलता है उनको सुनने से। अपने मेंटल पीस का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। तो उस वक्त तो बहुत सारे थॉट्स नहीं आते मेरे माइंड में, बहुत ज्यादा सोचती नहीं, लेकिन हाँ, रेट्रो सॉन्ग सुनने की हैबिट है मेरी, खाली बैठने पे। मैम फ्रेश सैलेड्स पसंद है या अच्छा फ्राइड फूड्स पसंद है मैम, लाइक समोसा कचौड़ी ऐसा? एक्चुअली मुझे फ्राइड फूड जितने भी जंक फूड होते हैं वो ज्यादा पसंद है। होना नहीं चाहिए, बट मैं एक बैलेंस बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे घर का खाना भी उतना ही अच्छा लगता है। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैंने जंक फूड खाया फिर मैं घर का खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, वीक में 1-2 बार चलता है, ठीक है, बाहर का आपने खा लिया, लेकिन घर का तो चाहिए, फिर भी चाहिए, जंक फूड खाने के बाद भी चाहिए मुझे। तो घर का तो मुझे खाना ही खाना है। हाँ, मुझे पसंद जंक फूड है, लेकिन हाँ मैं बैलेंस बना के चलती हूँ। ठीक ठीक। Dear ma'am, with this we come to the end of the interview, but we love to continue with you for a little more time. We'll invite you once again. We know that you're a busy person, a wonderful mom. Dear friends, we had a wonderful time, lots of learning. तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई इतने सारे इंटरव्यूज मेरे हो गए, 150 to 160 तक आ गए इंटरव्यूज, सब में से एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला। बहुत सारे इंटरव्यूज में बहुत सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसे नहीं है, लेकिन आज जो सेटिस्फेक्शन हमको मिला, बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन थैंक कि यू भाई मैम। हाँ, या दैट दिस पर्सन हैज समथिंग वेरी नाइस टू शेयर, ऐसा है, दैट्स रियली नाइस। थैंक यू मैम। Yes, dear. So, dear friends, with this we come to an end to the International Fab Talks. Before we end, there is one small request that we'll give to put across the table for our celebrity. Please, sorry and thank you. Magical words तो है ही है मैम, प्लीज सॉरी एंड थैंक यू। इसके अलावा हमेशा हम सेलिब्रिटी से रिक्वेस्ट करते हैं और 3 एडिशनल पॉजिटिव वर्ड्स इस मंच पर शेयर करें, ताकि हम उन पर गौर करके हमारी जिंदगी में अप्लाई कर सकेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड, और हमेशा अपना लाइफ को देखने का पॉजिटिव नजरिया रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। सेकंड, अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखिए। मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिसने 18 साल से पहले आप मेरी कोई भी पिक देखोगे, एक भी सिंगल फोटो आपको नहीं मिलेगी जिसमें मेरी स्माइल हो। लेकिन हाँ, उसके बाद जैसे कि धीरे धीरे ये चीज मुझे रियलाइज हुई, और मतलब कि मैं हमेशा उसके बाद वो जो स्माइल होती है ना, आपके अंदर एनर्जी लाती है। तो एनर्जी से फुलफिल होना, स्माइल लेके आइए। स्माइल रहनी बहुत जरूरी है, कि लोगों को देख के अच्छा लगता है। फिर लोग आपसे पॉजिटिव वाइब आती है। अगर आप मतलब कि नहीं हंसोगे तो वो पॉजिटिव वाइब नहीं आएगी, नेगेटिव वाइब्स आएंगी हमेशा। और तीसरा, हमेशा कोई भी स्ट्रेस आती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, हमेशा फ्लाइट मोड में ना जाए, फाइट मोड में जाए। 3 चीजें होनी चाहिए। Super, super. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for being with us. धन्यवाद मैम। बहुत जल्दी फिर आपको बुलाएंगे, आपको आनी ही पड़ेगी हमारे ये मंच पर, बिल्कुल बिकॉज मैम, जब आप yeah, there's बुलाओगे such तो a lot बिल्कुल। you have
to share, and really we love you for who you are. आपकी सोच बहुत नेक है. I love the flight and fight mode. You're encouraging everyone कि भाई जिंदगी के दुख से भागिए नहीं. सुसाइड नहीं करना है, फेस करनी है, फाइट करिए. अब जिंदगी एक जंग है, where you have to fight and face your life. That's what our guest would like to share. So we thank her a lot from the International Fab Talks. We love you also, dear friends. Thank you for your time out there. Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am, so much. Thank you, ma'am. Thank you. Okay.